Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is your English mentor Asmita Singh, and today we'll be solving the questions which came in CDS 2026 Cycle 1. So there were 120 questions. This is set A that we'll be covering, alright? So the directions are as follows. In the following items, a pair of words is provided. You are required to select the option that most appropriately describes the meaning of both the words and mark your response to the answer sheet accordingly. So as we covered in the class, these are the sets of homonyms. So they are pretty similar when it comes to the pronunciation, because you can see the alphabet are quite common, but their meanings are completely different. All right, so let's solve the question number 1. Okay, what is the meaning of pontoon? See, is it a wooden platform? Is it a temporary bridge? Yeah, it is absolutely right, because it is not a group of people, it is a temporary bridge. And if we say platoon, it is a group of soldiers, right? So is according, the option number Charlie is only right, the other are wrong. Because here pontoon is saying a group of soldiers, which is again wrong. So we need to match things like this. Okay, so pontoon is a temporary bridge and platoon is a group of soldiers. Let's move to the next question, which is invoke and revoke. So what is invoke? Is it to invite trouble for doing something? No, this is wrong. Is it the law when we want to achieve something? जब हमें कुछ अपील करना होता है लीगली, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है. ठीक है, सो अभी के लिए दिस वन मे बी राइट, ये इनकरेक्ट है. रिवोक का क्या मतलब होता है? जब हम कुछ ऑफिशियली डिस्कार्ड कर देते हैं. जैसे ईयर 2019 में आर्टिकल 370 को क्या करा गया था? रिवोक किया गया था. तो अभी दो ऑप्शन तो फिलहाल सही लग रहे हैं. अब हमें रिवोक की डेफिनेशन देखनी है. रिवोक मीन्स टू ऑफिशियली कैंसिल परमिशन, or revoke means to ignore legal procedures. No, this is also wrong. The right answer is bravo. ठीक है, invoke means the use of law to achieve something. The other words could be call upon or basically appeal. And revoke तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, that is to cancel something official. ठीक है, that is to discard something officially. Easy? Let's move to the next question. We did it in the class as well. कोई भी चीज which is about to happen and which is dangerous is known as imminent, right? जिसको खतरे की तलवार भी बोला जाता है, उसको imminent बोलते हैं. और eminent क्या होता है? Any personality which is very famous, which is very profound. All right, so let's see कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा fit है. Imminent means immobile and eminent means extremely large. No. Imminent means extremely large and eminent means immobile. No. Imminent means famous and respected and eminent means happening soon. ये opposite कर दिया तो ये भी cancel हो गया. The right answer is imminent means happening soon. That too something bad most of the time. ठीक है, जो बुरी चीजें होने वाली होती हैं या जो unluck होता है. ठीक है, and eminent means famous and respected. So the right answer is delta. Let's move towards question number 4. Libel and libel. Okay, now see, both of them are quite similar. Libel means publishing something that is false and libel means being legally responsible. मैं बताती हूँ. See, libel सबसे पहले समझते हैं. जब आप कुछ झूठा छापते हैं या लिखते हैं किसी के बारे में, that is libel. All right, तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया इन्होंने ये वाला ऑप्शन. ये वाला सही है. लाइबल मीन्स बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग एंड लिबल मीन्स पब्लिशिंग समथिंग दैट इज फॉल्स. कैसी? टेस्टिमनी, झूठी. ठीक है, फॉल्स टेस्टिमनी इज लिबल. सो द अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग. द राइट आंसर इज अल्फा. ओके, और कोई भी चीज जो लीगली क्या है? रिस्पॉन्सिबल है. जैसे कि इमेजिन करिए कपल है एंड दे गिव बर्थ टू अ बेबी. सो कौन लेगा बच्चे की लाइबिलिटी, कौन लेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी? उस छोटे से किड की जो उसके पेरेंट्स हैं. ठीक है, लीगली उन्हीं को लेनी है. ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर 4. अगेन इजी. इनक्रेडिबल और इनक्रेडुलस को सॉल्व करते हैं. इंडिया के लिए यूज होता है एक बहुत ब्यूटीफुल एडजेक्टिव इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल का मतलब होता है समथिंग विच इज अनबिलीवेबल.
जिस पे विश्वास नहीं होता, ठीक है। तो और इनक्रेडुलस क्या होता है, पहले क्रेडुलस समझते हैं। हमने एक वर्ड करा था स्टूडेंट्स क्लास में, क्रेडुलस, जिसका मतलब होता है वो लोग जो बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बहुत ही गलिबल होते हैं, सीधे होते हैं, नाइव होते हैं, बहुत जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही डाउट करता है हर किसी पे, ठीक है, जल्दी से भरोसा नहीं करता, आसानी से किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करता, ठीक है। सो इनक्रेडिबल मीन्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, नो, एंड इनक्रेडुलस मीन्स एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। ये डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई नहीं। इनक्रेडिबल मीन्स डिफिकल्ट टू बिलीव, अभी तक तो सही है। एंड इनक्रेडुलस मीन्स नॉट विलिंग to believe something. Now this is absolutely the right answer. Incredible means not willing to believe, नहीं, ये तो opposite कर दिया। and incredible means extremely grateful, नहीं। See, student, मैं आपको एक advice दूंगी, even if you know your answer, it's very much important to read the other options also, because sometimes UPSC plays a trick, or sometimes they give you such questions where you basically get confused, right? So it's my advice, even if you get your answer, please make sure to read the other options as well. Let's move to the question number 6. Climatic and climactic. Very easy, students. Climatic, anything which is related to climate. We often say, na, oh, what are, tell me about the climatic conditions of this place. Let's say Darjeeling in West Bengal. Okay, so climatic is what? Climatic is related to climate, right? And what is climactic? Now, there is only one more alphabet, that is climactic. So climactic क्या होता है, related to climax, and climax क्या होता है, the crunch of something, the main part of something is known as the climactic part. Let's see which one of the option is right. Climactic means the most exciting part, no, ये तो opposite हो गया. Climatic means scientific study of climate, no. Climatic means climbing up to the top of, no, this is the right answer. Climatic means related to the climate, and climactic means the most exciting part of a story or a situation, जिसको हम climax बोलते हैं. The only difference is this one is noun and this one is adjective. All right, students, बस part of speech का अंतर है, meaning में कोई भी difference नहीं है. Good question. Question number 7, cursor and cursory. Now you must have used computers, especially when you were very young, और जब आप computer labs जाते थे, you used to be very excited about the computers, and then you used those mouse, right? जिसमें आप क्या करते थे, cursor, pointer use करते थे. अभी because mostly laptop use करते हैं, but I'm pretty sure you very well know about mouse and cursor. So पहला वाला तो बहुत easy है. What is cursory? Cursory glance, मतलब कर्सरी का मतलब होता है जल्दबाजी, ठीक है, उसने बहुत जल्दीबाजी में, बहुत ही केयरलेसली किसी चीज की तरफ एक अपनी ग्लांस डाली, ठीक है, उसको देखा. तो देखते हैं कौन सा सही है. कर्सरी मीन्स अ हैंडराइटिंग टाइप, नो, कर्सर, सॉरी, वो तो कर्सरी राइटिंग होता है ना, उन्होंने तो कर्सर बोला है. कर्सर मीन्स अ वेरी ऑफेंसिव, no, wrong. Cursor means a very old norm, no. Cursor means a pointer, and cursory means something done in haste. And if someone asks you what is haste, someone who is very careless, ठीक है, बहुत जल्दबाजी, ठीक है. चलिए, affect and effect, 10 times probably I told you this in class, and I'm very sure that time also when I was teaching you this, I was very sure that this will come in your exam. What is affect, students? It's a verb, and what is affect? It's a noun. एक है effect, एक है affect, ठीक है. तो बस समझते हैं. Affect means origin of something, and effect means the consequence of an action. No, this is so a stupid option, right? Affect means to influence, exactly. See, this is to plus V1, which is verb form, and effect means the result of the action. This is absolutely right. See, this is prabhav and this is prabhavit, karna ya hona. Affect means to impact something and effect means to reason. No, यहाँ तक तो ठीक था, but ये गलत हो गया. Affect means the consequence. अब ये इन्होंने opposite कर दिया, ठीक है. And effect means to influence something. No, ये तो opposite हो गया. The right answer is bravo. Let's move to question number 9, which is hard and hardly. Again, a question from the class. This is an adjective, and sometimes it behaves like an adverb also, and this one is an adverb. ये होता है ना के बराबर, ठीक है, next to nothing. And hard, you very well know, something which is very coarse, something which is very rough. Hard means difficult to
a great degree and hardly means scarcely. Yes, this is absolutely the right answer because the other word for this adverb hardly is scarcely. Hard means difficult and hardly means very difficult. No, यहाँ पे student कई बार confuse हो जाते हैं कि hard मतलब tough और hardly मतलब बहुत ज्यादा tough. ऐसा कुछ नहीं है. Hard means with great force and hardly means ever so often. No, इसका उल्टा होता है. In fact, frequent का उल्टा क्या होता है? Hardly. He hardly studies. मतलब वो पढ़ाई नहीं करता है. ठीक है. हार्ड मीन्स टू ग्रेट डिग्री एंड हार्डली मीन्स नेवर. नहीं, हार्डली का मतलब नेवर नहीं होता. हार्डली मतलब कभी कभार. लाइक ठीक है. चलिए, सो द राइट आंसर इज अल्फा. ओके, व्हाट इज कॉन्शियस एंड व्हाट इज conscience? It is conscience. Don't read it as conscience or conscience. Okay, चलिए, conscious is what? Someone who is very much aware, someone who is very much alert. एंड कॉन्शियंस क्या होती है? कॉन्साइंस क्या होती है? कॉन्साइंस होती है आपकी अंदर की आत्मा, जो आपको हमेशा सही करने को प्रेरित करती है, आपकी अंदर की जो आवाज है. ठीक है. सो व्हाट्स द राइट आंसर? कॉन्शियस मीन्स ब्राइटनेस एंड कॉन्साइंस मीन्स सोशल अवेयरनेस. नो, कॉन्शियस मीन्स अवेयरनेस एंड कॉन्साइंस मीन्स बीइंग स्पिरिचुअली अवेयर. ठीक है, एक बार को इसको हम होल पे डालते हैं. Conscious means being able to perceive and conscience means inner sense of right and wrong, and conscious means clarity of purpose and conscience means perception. You know what's the most right answer? Because ये जो definition है ना, ये conscious की ही है, spiritually aware होना. So the right answer is Charlie. Okay, so students, we have completed 10 questions so far based on homonyms. Let's move to the question number 11. All right, now some different set of questions. In the following items, select the option that is nearest in meaning. Directions को बहुत ध्यान से पढ़िएगा students. यहाँ पे nearest in meaning का क्या मतलब है? They are asking for synonyms. And what are synonyms? Similar words, right? ठीक है, तो underline word का similar word हमें answer करना है. To say that the pandemic is done and dusted with would be an understatement. ये क्या होगा भाई? देखो, understatement का मतलब होता है underplaying significance. ठीक है, मतलब ये कहना कि पैंडेमिक खत्म हो गया और उसने कोई भी क्या नहीं पहुंचाई, बेसिकली उसकी वजह से कोई भी डैमेज नहीं हुआ, ये कहना क्या होगा? एक अंडरस्टेटमेंट होगी. मतलब हम क्या कर रहे हैं? कम आंक रहे हैं. किसको? पैंडेमिक को हल्के में ले रहे हैं. ठीक है. So this is the right answer. 12th, the coach was of the opinion that his erstwhile protege was approaching the nadir of his career. ये क्लास में कराया था. ये जेनिथ का एंटोनिम है. क्या होता है स्टूडेंट्स? जेनिथ का मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट, जिसको हम पीक भी बोलते हैं, जिसको हम पिनाकल भी बोलते हैं. पीक ऑफ समथिंग, जिसको हम पिनाकल कहते हैं. ठीक है, जिसको हम एपेक्स कहते हैं. बहुत सारे वर्ड्स कराए थे क्लास में. ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या होता है? सबसे जो नीचे होता है. ठीक है, सो नादिर इज व्हाट? द लोएस्ट मोस्ट पॉइंट. ठीक है, लोएस्ट, लोअर मोस्ट पॉइंट, पाताल. ठीक है, ये तो एंटोनिम हो गया. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. After the sudden demise of the director of the company, the employees felt stranded. Sudden death हो गई. demise का क्या मतलब होता है? कोई गुजर गया, death हो गई. कैसा फील कर रहे हैं employees? देखो, stranded मतलब होता है isolated, अकेला महसूस कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि सबने उन्हें छोड़ दिया है अकेले. इसके लिए एक idiom है बहुत इंपॉर्टेंट, to leave someone at the lurch. किसी को अकेले छोड़ देना मुश्किलों के समय. ठीक है, सो द राइट आंसर इज व्हाट? अ वेरी गुड वर्ड, मरून्ड. लिबरेटेड का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना. कोई जब बहुत ही अनॉयड होता है, गुस्से में होता है, दैट इज एग्रीव्ड. एंड पैसिव इज समवन हु इज नॉट एक्टिव, बट द राइट आंसर इज ब्राव. ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. द प्रोफेसर assured us that her class lectures would be interspersed with practical demonstrations. जो उनकी क्लास होगी, क्या वो आइसोलेटेड होगी? अच्छा, एक बार को स्टूडेंट को लग सकता है एक्सप्लेन्ड, बट इंटरस्पर्स्ड का मतलब होता है व्हेन आई कंबाइन मेनी थिंग्स टुगेदर. मतलब जो ये मैम है, इनकी क्लास में प्रॉब्ली एग्जाम्पल्स होंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे. ठीक है, कुछ स्किट होगा, प्ले होगा, या उस टॉपिक को समझाने के लिए कोई थीसिस होगा. मतलब लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर. सो द राइट आंसर इज इंटरस्पर्स्ड का मतलब ही होता है द थिंग्स विच आर मिक्स्ड और द थिंग्स विच आर कंबाइंड. ठीक है, let's move to the question number
15 बिकॉज आज हम आंसर की डिस्कस कर रहे हैं. वैसे मैंने अपनी सारी क्लासेस में मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स बहुत ही डेप्थ में कवर करा रखे हैं. ठीक है, तो वी हैव डन 14 क्वेश्चंस. व्हाट्स द क्वेश्चन नंबर 15? शी वाज एफ्यूसिव इन हर प्रेज. ठीक है, नाउ effusive is what? It's a very good word students. इसका मतलब होता है जब आप किसी भी फीलिंग को बहुत ही enthusiasm के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ वेंट आउट कर रहे हैं. ठीक है, सो शी वाज एफ्यूजिव इन हर प्रेज. डिस्पैशनेट है क्या? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर कोई पैशन नहीं है? नहीं. ट्रैंक्विल अप्रेजल, ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, काम. ठीक है, सूदिंग एंड एनकरेजिंग. नो, द राइट आंसर इज एक्सप्रेसिंग अप्रूवल व्हाइल exhibiting strong feelings. So she is very excited, very energetic, all right, and very enthusiastic about it. So that's the right answer, which is alpha. Let's move to question number 16. It is ingenuous. मैंने अभी आपको बताया था एक word credulous. Ingenuous उसका synonym है. क्या होता है इन दोनों शब्दों का मतलब? someone who is very naive, someone who is very gullible, someone who gets influenced very easily. ठीक है, clever तो आप जानते ही हैं. erudite, someone who is very smart, very wise, very skilled. ये तो opposite हो गया ingenuous का. Probing is what? When you are probably looking into something, you know, searching something, probe कर रहे हो किसी चीज की. ठीक है, so the right answer is alpha. The advertisement were all posted in a conspicuous place. Again, a question of class. Conspicuous का क्या मतलब होता है? Something which is very much clear. कोई चीज जो बहुत ज्यादा noticeable है. ठीक है, अच्छा देखो ऑप्शन में भी दिया हुआ है something which is very clear. जो चीज बहुत डायरेक्ट है. ठीक है, स्पष्ट है. नीश नहीं होगा. नीश इज बेसिकली और स्किल या आपकी फ्लेयर. ठीक है, आपका वो एरिया जो आपका कंफर्टिंग जोन है. वेनरेबल, वेनरेबल हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स होते हैं, बड़े होते हैं. दैट इज रिस्पेक्टेबल एंड अवेलेबल टू यू वेरी वेल. ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18. Early humans may have had a rudimentary understanding of certain mathematical concepts. चलिए एक बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझते हैं. कोई बिल्डिंग अगर अपनी रूडिमेंट्री स्टेज में है, मतलब अपनी एलिमेंट्री स्टेज में है, इसका मतलब अपनी शुरुआती इनिशियल स्टेज में है, अभी बन रही है धीरे धीरे. ठीक है, तो रूडिमेंट्री क्या हो गई? द इनिशियल स्टेज. There is a very beautiful word which always comes in your examination. So let me give you that word, students. That is nascent stage. Nascent stage is the initial stage of something. All right. Nuance क्या होता है? Nuance होता है जो बहुत ही छोटी छोटी details होती हैं, सूक्ष्म details होती है ना, intricate details होती हैं, उनको बोला जाता है nuance. ठीक है, radical तो आपको पता ही है, extremist जो होते हैं, extremes हमेशा end में रहते हैं, और special तो नहीं. Answer is alpha, which is elementary. Question number 19. The poorly conducted workshop was a travesty of the initial vision document. इसको बोलते हैं parody. इसको बोलते हैं किसी चीज का false और बहुत ही भद्दा presentation. It is presentation. जैसे इसका एग्जाम्पल देती हूँ. आपने मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में तो सुना होगा, बहुत ही फेमस पेंटिंग है. तो कई बार आप देखते हैं ना, लोग मजाक में उसकी क्या बनाते हैं, ट्रेविस्टी बनाते हैं ना, उसकी क्या बनाते हैं, मॉकरी बनाते हैं, विच इज नथिंग बट द फॉल्स प्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग. ठीक है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा. एक्सपेंशन इज व्हाट? स्प्रेड करना, किसी चीज को एक्सपैंड करना. डेमोन्स्ट्रेशन नहीं. द राइट आंसर इज अल्फा. The abstruse style of the speaker left the students disinterested and fidgety. Fidgety क्या होता है? Someone who is very much volatile. लैक ऑफ फोकस, मन नहीं लग रहा, स्टूडेंट्स का डिसइंटरेस्ट आ रहा है. क्यों? क्योंकि जो स्पीकर का स्टाइल है वो बहुत ही अनक्लियर है, बहुत ही ऑब्सक्योर है. ठीक है, बहुत ही वेग है, अस्पष्ट है. चलिए सिनोनिम ढूंढना है. क्या होगा? एकेडमिक नहीं होगा. कंसाइज मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कंसाइज मतलब होता है ब्रीफ. एरुडाइट मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया, समवन हु इज वेरी वाइज, राइट. And what's the right answer? Recondite. Recondite भी वही चीजें होती हैं जो क्या होती हैं, बहुत ही hidden होती हैं, बहुत ही dubious होती हैं, समझ ही नहीं आ रहा होता, confusion create करती हैं. So the right answer is recondite. How many questions we have covered so far? We have covered 20 questions, students. Let's move towards the question number 21. Okay, now select the most appropriate meaning of the given words from the options provided and mark your response on the answer sheet accordingly. फिर से आपके सामने एक word दिया हुआ है, आपको उसका meaning mark करना है. Students, let me tell you one thing. I told you this thing in the class also. This weightage of vocabulary is increasing day by day. You can also see that so far we are only doing the questions of vocabulary. In fact,
when we move further in this question paper, you'll again realize there are a lot of vocabulary questions are there, so please work on that. Okay, अब जो हम करा रहे हैं क्लास में, मैंने आपको एक चैप्टर कराया है, that is one word substitution. अगर कोई भी ऐसा व्यूअर है इस क्लास का जिसको इसके बारे में नहीं पता, आई वुड एडवाइज यू प्लीज इनको पढ़ के आइए. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है पहले मैं आपको बताती हूँ. व्हेन वी रिप्लेस अ होल सेंटेंस विद अ सिंगल वर्ड. ऑल राइट, फॉर एग्जांपल, हु ट्रीट्स पेशेंट, or the name of the person who treats patient is a doctor. Someone who teaches students, a teacher or a mentor. Similarly, now one of the options is the definition of the given word. Okay, iconoclast वो होते हैं जो image और traditions को break करते हैं. Their way of living is very much unconventional और एक modern तरीके से सोचते हैं. तो what would be the right answer? Person who criticizes a cultural icon? No. Person who attracts a lot of attention? नहीं. इसके लिए word है cynosure. ये भी we did in the class, right? Person who does not adhere or accepted belief. Exactly. What is the meaning of adhere to, students? That is stick by. किसी चीज को follow करना, किसी चीज से stick रहना. Person who negates his own position. No. ठीक है, axiom क्या होता है, ये भी बहुत easy है, करा है कई बार. That is the truth or the reality. So quality of being very similar. No. Rule or principle that most people believe to be true. Exactly. ठीक है, जो अक्सर सच होता है. जैसे कि you know the sun rises from the east, so everyone believes in it because it is the reality. So it's an axiom. Rule that says how people should behave. No. The mathematical principle of being exactly equal. No. Let's do question number 23rd. कई बार आपको कहा जाता है by your teachers की holistic preparation कीजिए अपनी एग्जाम की. That is whole. That is overall. So what would be the right answer? Relating to complete system. Exactly. Rather than the individual part. I'm talking about whole. Relating to a particular work in a certain industry? No. Related to routine tasks? These are known as the mundane or monotonous tasks. Related to holy rituals? No. Sacred. Holy means sacred. That is pious. Pavitra. Okay, students, let's move to the question number 24. Obsequious. There's one more word that I taught you, that is sycophant. Now, who is a sycophant? क्या होता है sycophancy? That is oily, being an oily tongue या being a flatterer, जो बहुत ज्यादा चापलूसी करते हैं. So, obsequious का मतलब है जो लोगों को बहुत ज्यादा प्लीज करते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा क्या करते हैं, उनको सर्वाइल मैनर में उनके साथ पेश आते हैं. सो एक्सेसिवली कॉन्फिडेंट अबाउट वन सेल्फ. नो, ये तो ईगोइस्टिक होता है. ओवरली ईगर टू हेल्प. एग्जैक्टली. हद से ज्यादा तैयार रहते हैं दूसरों की बात मानने में, ठीक है, सर्वाइल मैनर में बिहेव करते हैं. टू इमोशनल और ड्रामेटिक. फार टू इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टेड टू बी क्रिटिसाइज्ड. नो. All right, let's move to the question number 25, which is pachyderm. What is pachyderm? ये तो आपने biology में भी पढ़ा होगा, science में पढ़ा होगा. It's not just about the human skin, sometimes about the skin of a tree or skin of a crop or skin of a plant. Pachyderm is the thick skinned layer, okay, especially of a mammal, right? So, and the other options are absolutely wrong. All right. Ubiquitous, again the question from the class, which is omnipresent. What is the meaning of ubiquitous? Something which is present everywhere. जो हर जगह present है, जो हर जगह, ठीक है, क्या है उनकी, जैसे God को अक्सर omnipresent या ubiquitous कहा जाता है. तो something with limited presence? No. Something with skewed presence? No. Something with wide presence. Selective presence क्यों होगी भाई? ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में या सेंट्रल पार्ट में नहीं. Ubiquitous, that is omnipresent. All right, good question. Let's move to the question number 27. Desiccate. कई बार बोलते हैं it's a desiccated coconut. आप भी मांगते हैं ना, आपने, बहुत ही अच्छा होता है साउथ इंडियन cuisine, बहुत ही हेल्दी होता है. आपने देखा होगा उसमें desiccated coconut की चटनी बनती है, right? Which you probably like very much with dosa or with idli, sambar, uttapam, whatever it is. Okay, so what is desiccated? Anything which is dried. तो एक तो होता है प्रॉपर नारियल, जैसे इट्स यू नो इट्स समर्स नाउ इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑफ द ग्लोब, और अब लोग क्या प्रेफर करते हैं, दैट कोकोनट वाटर, राइट, विच इज वेरी हेल्दी फॉर योर गट ऑल्सो. इट्स बेटर टू नॉट टेक दोज कोल्ड ड्रिंक्स, right students, and rather take coconut water or lassi or some sort of like that. तो वो तो हो गया coconut full of water, but what is that dry coconut? Desiccate is something which is dried, ठीक है, जिसको जानबूझ के ड्राई आउट किया है ताकि आप उसको कंज्यूम कर पाए, ठीक है.
Deleterious, again, see, deleterious is something which is very much harmful, ठीक है, जो आपके लिए क्या है, आपको डैमेज कॉज कर सकता है, ठीक है. सो द राइट आंसर इज चार्ली. गुड वन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवोकेट? चलिए इक्विवोकेट समझते हैं. इक्विवोकेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, if people are equivocating, if someone is equivocating things, ठीक है, that means he is not able to decide between the two things, so he's rather taking both the options, he's rather, you know, he's sitting on the fence. इस idiom का मतलब है जब आप commit नहीं करते, आप किसी एक जगह incline नहीं होते. So what is the right answer? Let's see the options first, then we'll mark our answers. So equivocate करना, ये देखो, to advocate equally for both sides, इधर भी उधर भी, तो इसको बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ठीक है. किसी एक मुद्दे पे या किसी एक साइड को आप चूज नहीं कर रहे हो, ठीक है. दैट इज ब्रावो. Let's move to the question number 30, which is, okay, I think it's here only. Yeah, here it is, indolent. Again, a very, very easy word. Indolent का मतलब होता है someone who is very much in lassitude, someone who is feeling a lot of lethargy, ठीक है, and someone who is very much lazy. All right, good one. Okay, now again some different set of questions we're gonna do. Let's read the directions first and then we'll proceed, okay? So in this section, each item consists of 6 sentences. You can see how many sentences are there, students? S1, S6, 2 sentences, and the other 4 are PQRS. So total 6 sentences, right? As S1 and S6 are the first and the 6 sentences. So this is the beginning and this is the end. The sequence of the 4 sentences in the middle, PQRS, has been jumbled. इनको क्या करा गया है? Jumble किया गया है. You are required to find the proper sequence of the 4 jumbled sentences. So with the help of S1 and S6, we need to arrange PQRS. We are given some options also. So I think you're ready, students. Let's do it. So the statement number 1 says, the word science originates from the Latin word scientia, meaning to know. All right. By the middle of the 20th century, science had become a truly international enterprise with many cultures and countries contributing to its rapid growth. This is the end of the sentence and this is the starting of the sentence. Now see, what's the trick, students? मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी बताया, वैसे आज मैं सिर्फ आंसर्स बताऊंगी आपको क्विकली, बट मैं आपको एक तरीका बता दूं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का. वो सिंपल सा तरीका ये है कि आपको सबसे पहले ढूंढना है S1 के बाद कौन सा आएगा, वेदर इट्स PQR और S, और S6 के इमीडिएटली पहले कौन सा आएगा इनमें से. तो इससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा सॉल्व करना. जैसे आप अगर ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शंस कैसे हैं जो स्टार्टिंग में ले रहे हैं S. तो सबसे पहले द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिंटिया, मीनिंग टू नो. एग्जैक्टली. अब संस्कृत वर्ड क्या है? संस्कृत वर्ड भी बताया है, दैट इज विजनना, and the Arabic word is im that convey a similar meaning. मतलब सबसे पहले तो बताया है साइंस के बारे में और फिर बोला है उसे लैटिन में क्या कहा जाता है. तो सिंपल सी बात है, फिर कहेंगे कि इसको संस्कृत में या अरबिक में क्या कहा जाता है. ठीक है, तो चलिए ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया अल्फा. अब देखते हैं पी आएगा या क्यू आएगा. पी क्या कहता है? साइंस इन अ ब्रॉड सेंस इज एज ओल्ड एज ह्यूमन स्पीशीज. फ्रॉम द 16th century onwards, great strides were also made in science in Europe. See, अब ना टाइमलाइन की बात होगी स्टूडेंट पहले, अब बात होगी टाइमलाइन की कि 16th century से ही 16th century के ही ऑनवर्ड्स ग्रेट स्ट्राइड्स, मतलब स्ट्राइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट? स्टेप्स लिए गए थे किसमें? इन द फील्ड ऑफ साइंस, दैट टू इन यूरोप. ठीक है, फिर क्या बेसिकली बोला गया है? इन अ ब्रॉड सेंस इट इज, पहले क्योंकि टाइमलाइन बताई जाएगी ना,
और फिर इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि इसीलिए ये बहुत ही ओल्ड है, ठीक है, ये ह्यूमन स्पीशीज जितनी ही ओल्ड एज कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स इन द एंड, दैट इज आर और द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया एंड मेनी अदर्स मेड वाइटल contributions to its progress. So the right answer is D. All right, 51 का जाएगा, sorry 31 का जाएगा D. Let's do 32. As I told you, here I'm telling you the answers and that's a very quick thing. So एक बार देख लेते हैं. Britain was the first country to experience modern industrialization. ठीक है, this gave people a wider choice of ways to spend their earnings and expanded the market for the sale of goods. तो देखते हैं सबसे पहले S1 के बाद सबसे ज्यादा एप्ट क्या है, Q, दो Q से शुरू है, दो S से शुरू है, ठीक है। Q क्या कहता है, it had been politically stable। अब it मतलब कोई सिंगुलर नाउन, ठीक है, और यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, ब्रिटेन की, विच इज अ सिंगुलर नाउन। अगर मैं एस के साथ जाऊं एज अ कॉन्सिक्वेंस, सीधे तो किसी बात का आप कॉन्सिक्वेंस नहीं दे सकते ना, अभी तो कुछ आप मेंशन करेंगे, तो दो ऑप्शंस तो कट गए। क्यूपी साथ में है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप इसे पूरा ट्रांसलेट करके करेंगे स्टूडेंट्स, आपका आंसर तो सही हो सकता है बट यू विल लूज अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम आप व्यर्थ में ही गवा देंगे, इसीलिए इन ऑप्शंस के हेल्प से इन्हें सॉल्व करना। सो क्यू के बाद आएगा पी, स्टेबिलिटी meant that the kingdom had common laws, ठीक है, किंगडम के बारे में मेंशन किया गया है। और फिर कहा गया है किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस, देखो किस चीज का कॉन्सिक्वेंस, जो इन्होंने टैक्सेस लगाना शुरू करे, ठीक है, और उससे क्या हुआ, उन टैक्सेस से प्राइस बढ़ गया, तो तभी सबसे एप्ट क्या है, ब्रावो। आप एक बार करिएगा सॉल्व, ब्रावो इज एब्सोल्युटली द राइट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 इज अबाउट विलियम वन। ओके, तो ये पढ़िए, मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर भी है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबसे पहले देखिए पी के बाद, सॉरी S1 के बाद क्या आएगा, S1 के बाद आएगा दीज नोबल लॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ नोबल लॉर्ड्स के नाम भी दिए हुए हैं, देखिए विलियम वन का नाम दिया गया है, ठीक है, और फिर नॉर्मन नोबल्स का नाम दिया गया है, तो प्लूरल वर्ब चाहिए थी मुझे, प्लूरल नाउन है बिकॉज यहाँ पे, इसीलिए ये सबसे ऐप जाएगा। एस के बाद फिर आर आएगा सीधे, देवर, ये दे भी किसके लिए लगा है, इन्हीं नोबल लॉर्ड्स के लिए लगा हुआ है, ठीक है। फिर आएगा क्यू, दे सून बिगेन टू गिव सम ऑफ देयर ओन लैंड्स टू नाइट्स, ठीक है, नाइट्स को क्या देना शुरू करा, अपना लैंड देना शुरू करा, और फिर इवेंचुअली एंड करेंगे इस पे, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34। Here it is. It says, in an economic sense, feudalism refers to a kind of system of agricultural production. ठीक है, अब सिंपल सी बात है, feudalism, देखिए कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो इनफैक्ट द लेटर, अभी तो कोई लेटर मतलब बाद में, ठीक है, द लेटर वन, सो उसकी तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है, तो मेरे ख्याल से पी से तो होगा नहीं, खैर पी कोई ऑप्शन में भी नहीं है। द पेजेंट्स, अभी पेजेंट्स का कोई मेंशन नहीं है, सबसे पहले किसी की बात होगी, फ्यूडलिज्म की ही बात होगी। अगर आप ब्रावो को देखें सबसे ज्यादा फिट है, QSPR, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड्स एंड peasants who worked on the farmers land। और उसके बाद क्या बोला गया है, the peasants, अब देखिए ना यहाँ पे peasants की बात है, फिर सेंटेंस एस को क्यू के बाद क्या, पी के बाद क्या करा है, एस के बाद क्या करा हुआ है, एक्सपैंड करा हुआ है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 इज अबाउट द जापानीज। The Japanese Empire was considered rich, क्या उसे कंसिडर करा जाता था, रिच कंसिडर करा जाता था, ठीक है। अब देखिए दो किससे दिए हुए हैं, क्यू से, दो दिए हुए हैं एस से। देखते हैं सबसे पहले S1 के बाद क्यू लगाना ठीक है या एस लगाना ठीक है। एक बोलता है ओवर टाइम द सिल्क फ्रॉम, अभी तो सिल्क का कोई मेंशन नहीं है, इससे पहले ही क्या सिल्क का कहीं पे मेंशन है। एक बार एस देखते हैं, दिस वाज बिकॉज इट, बिल्कुल, जापानीज को क्यों रिच कंसिडर करा गया, बिकॉज वो क्या इंपोर्ट करते थे दूसरे देशों से, लग्जरी सिल्क इंपोर्ट करते थे, ठीक है, कहां से करते थे, चाइना से, और इंडिया से क्या करते थे, टेक्सटाइल, तभी तो उनको, तो आप अगर ध्यान से देखें एस का रीजन क्यू दे रहा है और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सॉरी एस का रीजन, एम आई गेटिंग कंफ्यूज्ड, हाँ सही बोल रही हूं मैं, S1 का रीजन S दे रहा है, तो S1 के बाद S आएगा, ठीक है, फिर P आएगा। हाउएवर
पेइंग फॉर दीज इंपोर्ट्स विद गोल्ड एंड सिल्वर स्ट्रेन द इकोनॉमी। बट क्या हुआ, इतनी महंगी चीजें मंगाने की वजह से इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा धक्का पड़ा, स्ट्रेन पड़ा, प्रेशर पड़ा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। ओके, इट्स अबाउट क्रिकेट। The seasoned cricketer catches a cricket ball coming in with great speed far more easily than a novice. पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। We discussed it in the class. Someone who is a beginner, ठीक है, मतलब जिसने अभी अभी क्या शुरू करा है किसी क्षेत्र में, नौसिखिया है, बहुत ही क्या है, रॉ है अभी। ठीक है, तो भाई एक तो हो गया सीजन क्रिकेटर, मतलब जमा हुआ खिलाड़ी, समवन हु इज वेरी मच एक्सपीरियंस्ड, और एक हो गया समवन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड, जो अभी अभी आया, नौसिखिया है। वो क्या कर देता है, कई बार अपने हाथ को हर्ट कर लेता है, जो नौसिखिया है। क्यों है ऐसा, वो बताया गया है कि इसमें सबसे पहले रीजन दिया जाएगा ना उसका। वन रीजन इज दैट द सीजन क्रिकेटर अलाउज अ लॉन्गर टाइम फॉर हिज हैंड्स टू स्टॉप बॉल। और ऐसा वो क्यों करता है स्टूडेंट, वो ऐसा इसलिए करता है ताकि क्या हो जाए, जब वो अपना पीछे हाथ खींचे तो वो उसको एक टाइम मिल जाए बॉल को कैच करने के लिए। तो क्यू एस का कॉम्बिनेशन आपको एक ही जगह मिल रहा है। उसके बाद पी के बारे में, द नोविस ऑन द अदर हैंड कीप्स हिज हैंड्स फिक्स्ड एंड ट्राइज टू कैच द बॉल ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। जो नौसिखिया होता है वो तुरंत ऐसे कैच पकड़ने लगता है, ऐसे पीछे नहीं करता है अपने हाथ, और इस वजह से क्या होता है, कई बार उसको, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि उसको चोट लग जाती है। ठीक है, तो एक ही आंसर सही है, डेल्टा। लेट्स डू 37। People fall down from staircase in different ways in different countries. लोग अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं। ठीक है, seems quite interesting. सबसे पहले एग्जाम्पल, ये इसी बात का एग्जाम्पल आप खुद ही देखिए कहाँ पे दे रहा है। अभी दिस इज, ये तो एंड है। दे रिलाई कौन, अभी तो कोई मेंशन ही नहीं हुआ ना, अभी तो कोई प्लूरल सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं हुआ, पी से शुरुआत होगी नहीं, क्यू से होगी। दिस इज नॉट, बिकॉज अभी तो कोई रीजन ही नहीं दिया। दो ही ऑप्शन बच रहे हैं आपके, तीन ऑप्शन बच रहे हैं अभी एस वाले। तो एस फॉर इंस्टेंस एग्जांपल दिया है, समवन इन जापान इज फार मोर लाइकली टू बी हर्ट इन अ स्टेयरकेस, फॉल इन एन ऑफिस, डिपार्टमेंट स्टोर और रेलवे स्टेशन देन एनीवन इन यूएस। ऐसा क्यों है कि अगर यूएस में भी कोई सीढ़ियों से गिरे और जापान में भी कोई गिरे सीढ़ियों से, तो ज्यादा चांसेस है कि जापान में जो गिरा है उसको ज्यादा चोट आएगी। ठीक है, और इसका रीजन इन्होंने कहा है, ये ऐसा इसलिए नहीं है कि जापानीज रेकलेस है, रेकलेस मतलब केयरलेस है। ठीक है, बट सिंपली बिकॉज अमेरिकन्स डोंट मच यूज दी स्टेयर्स, मतलब वो स्टेयर ज्यादा यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो एस क्यू का कॉम्बिनेशन अभी दो में जा रहा है, इन दो में। बाकी देखते हैं एस क्यू के बाद क्या आएगा। दे रिलाई, अच्छा कौन, अमेरिकन्स फिर किस पे रिलाई करते हैं, ये रहा ऑप्शन स्टूडेंट्स। दे रिलाई मोर ऑन लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स। ठीक है, और फिर इवेंचुअली आप एंड करेंगे आर से। स्टेयरकेस इंजरीज देयरफॉर हैपन मोस्टली एट द होम। अब प्लीज मेरी एक बात का ध्यान रखिए, बिकॉज आई डोंट हैव दिस मच टाइम। आप इसको पढ़िएगा, इट्स वेरी वेरी इजी। आई एम टेलिंग यू द आंसर्स, match your answers and then go through them. Okay, they are very easy and very interesting also. Okay, the lantana plant is not native to India. However, educating, अच्छा this is the ending. Let's not read the ending first, let's do the question first. दो ऑप्शन आपके क्यू से, एक ऑप्शन आपका क्यू से शुरू है, एक ऑप्शन आपका एस से शुरू है, दो आर से शुरू है। ठीक है, अब देखिए इट के लिए किसके लिए लगा हुआ है, ऑलरेडी इट्स यूज्ड फॉर दिस प्लांट। ठीक है, तो सिंगुलर ही चाहिए, तो अभी तो इन्हीं में से कोई एक आंसर है, या तो बी या सी। अब देखते हैं पहले क्यू आएगा या पहले पी आएगा। ठीक है, अगर क्यू देखें, रिसर्च ऑल्सो शोज दैट द लैंटना हैज इन्वेडेड मोस्ट पैस्चरल लैंड्स इन द कंट्री सिंस देन इट हैज स्प्रेड ओवर 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स कवरिंग 50% ऑफ द कंट्रीज। बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर ब्रावो को, तो उसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहले कब ये इंट्रोड्यूस हुआ कंट्री में, इन्हें इंट्रोड्यूस में एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह किसने, ब्रिटिश ने क्या करा, इसको इंट्रोड्यूस करा। और तब से 1800 से इसने क्या कर लिया है, ये बहुत ही फैल गया है। ये जो प्लांट है ये करीब 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैल गया है। तो ऐसा सिर्फ एक ही में है, दैट इज ब्रावो। तो ब्रावो इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। लेट्स डू 39। बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन में जाइए, पूरा पढ़ेंगे, जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस में एक दो है क्यू से और एक है एस और एक है पी से। सबसे पहले क्यू को ही देखते हैं। ठीक है,
क्यों है बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल? बिकॉज इसको क्या करना है, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिक्वायर्स द अर्जेंट कोलैबोरेशन बिटवीन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशन। कहते हैं अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो हमें कोलैबोरेट करना होगा, ठीक है, इन्वॉल्व होना होगा, ठीक है। फिर क्या कहा गया है, पी कहा गया है क्यू के बाद, कॉर्पोरेशंस हैव अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प नेविगेट डिस्कोर्स, बिल्कुल। अब एक बार आप एस को देखिए, रीडिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी की पेपरलेस की बात हुई है, और फिर आर मतलब एस के बाद बिल्कुल फर्दर ना कभी भी पीछे ही आएगा, क्योंकि फर्दर कहता है इन एडिशन टू, सो फर्दर कस्टमर्स डिमांड फॉर ग्रीनर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात हुई है और कस्टमर्स भी क्या मांग रहे हैं, ग्रीनर प्रोडक्ट्स मांग रहे हैं। अब बाकी सॉल्व करिएगा, सारे आपको इलॉजिकल लगेंगे, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन रॉन्ग होंगे, ठीक है। एंड द 40th एंड द लास्ट question based on S1 S6 is, let me show you the full question, I hope it's visible, it's a big one. Among the momentum watersheds through which human beings have passed since their appearance over 1 lakh years ago, none has been more profound in its consequence than the shift to agriculture. Agriculture की बात हो रही है, right? Before that, अब देखिए उस context में अगर आप ध्यान से देखें, इससे पहले क्या था, बिफोर दैट फॉर काउंटलेस जनरेशन नियर बाय ऑल ह्यूमंस हैड लिव्ड एज हंटर्स। उससे पहले कैसे रहते थे, हंटर्स और गैदरर्स की तरह। तो भाई अगर आप ध्यान से देखें, एस से ही शुरू होगा, एस के बाद क्यू आएगा। वो कैसे रहते थे, लाइक द वे इन विच देयर ओन होमिनिड प्रेडेसर्स हैड लिव्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा आर। हाउएवर अब थोड़ा सा एक शिफ्ट लाएंगे किसमें, इस मिनी पैराग्राफ में, ठीक है, कि कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज हुआ, कैसे कैसे इन्वेंट हुआ एग्रीकल्चर, और उसके बाद आप एंड करेंगे कि ऐसा क्यों करा उन्होंने, ऐसा पर्पसफुली करा ताकि उनका लैंडस्केप ट्रांसफॉर्म हो सके। तो इसका आंसर डी होगा। आप चेक करिएगा, सॉल्व करिएगा। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड दी होल कॉन्सेप्ट, वरना 1 आवर सिर्फ S1 S6 में जाएगा, ठीक है। अभी की क्लास इज प्योरली डिजाइन टू जस्ट टेल यू दी आंसर्स एंड टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस। सो द राइट आंसर इज डी, ओके। अब चलते हैं, डायरेक्शंस चेंज हो गए हैं स्टूडेंट्स। नाउ गिवन बिलो आर सम मीडियम्स एंड फ्रेजेस। नाउ दीज आर वेरी इजी, इतने कोई टफ नहीं आए थे। ये फिर से एक वोकैब का सेक्शन आ गया है, मुहावरे, यू वेरी वेल नो। तो हमको एक एक करके सॉल्व करना है। सबसे पहले सबसे पहला इडियम है मीली माउथेड। ये वो लोग होते हैं जो बहुत मीठा बोलते हैं। तो अक्सर मीठा बोलने के चक्कर में ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, अपनी जो मन में बात होती है वो डायरेक्टली नहीं रखते, बातों को बहुत ही ट्विस्ट करके फिल्टर करके बोलते हैं। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, लैकिंग ब्रेवनेस। इनमें ब्रेवरी नहीं होती ना, ये फोर्थराइटली नहीं बोलते चीजों को, ठीक है। कैसे, घोल के, चाशनी में घोल के बोलते हैं, ठीक है, मीली माउथेड। द अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। लिव इन ईच अदर्स पॉकेट, जो लोग एक साथ बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, जो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उनको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, उनको बोला जाता है लिव इन ईच अदर्स पॉकेट। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, टू स्पेंड टू मच टाइम टुगेदर। ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। प्ले पॉसम, आपने कई बार कुछ एनिमल्स को देखा है, और ये किसी किसी एनिमल का तो स्वभाव भी होता है कि जब उसको डेंजर लगता है अपने आसपास, सो ही प्लेज पॉसम, दैट इज he tries to play that probably that animal is dead, right? So play possum का मतलब है you're pretending to be dead, okay? Easy. Let me zoom in a bit for you people. Play possum is to pretend to die. Work like a dog. Are you working like a dog? Are you putting a lot of hard work? Are you straining every nerve? So that is to work really hard. ठीक है, Charlie. ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स, जब आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन ले आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स। टू स्पार्क अ सिचुएशन दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी मुसीबत को वेलकम करना, ठीक है, या बहुत ज्यादा मुसीबत क्रिएट करना इज टू ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स। सो फार वी हैव डन 45 क्वेश्चंस। इन्होंने 10 क्वेश्चंस दिए इडियम्स के, अभी करते हैं, जस्ट गिव मी अ ब्रेक। The next idiom is more than meets the eye. कई बार हमें लग रहा होता है अरे सामने जो इन्फॉर्मेशन है बड़ी ऑब्वियस है, बट कई बार हमें बाद में पता चलता है थोड़े टाइम बाद कि ये जितना आसान लग रहा है, जितना ऑब्वियस लग रहा है, उतना है नहीं, कुछ तो ऐसा है जो डिस्गाइज्ड है, हिडन है।
सो द राइट आंसर इज चार्ली. द डिस्गाइज्ड सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस क्या होती है? इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग बियॉन्ड दी ऑब्वियस. मतलब ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो ये नहीं कर सकता, बट आपको बाद में पता चला कि जेन्युइनली इसी ने ये किया, आंखों को नहीं दिखाई दे रहा है, बट असल में सच्चाई कुछ और है. होल्ड द फोर्ट का क्या मतलब है? अगर आप किसी और की जगह जिम्मेदारी संभालते हैं या जिम्मेदारी उठाते हैं, उसको बोलते हैं टू होल्ड द फोर्ट. टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑन बिहाफ ऑफ समवन हु इज एब्सेंट. ओके, किसी की जिम्मेदारी उठाना. इट्स ऑल ग्रीक टू मी. अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही, if you're not able to discern something, if you're not able to understand something, it's all Greek to me. So the right answer is I cannot understand it at all. Charlie. Okay, 48 का Charlie होगा. The last two questions of idioms and phrases are as follows. To close ranks. What is the meaning of closing ranks? That is जब कई बार लोग unite हो जाते हैं, ठीक है, वो भी अलग अलग कम्युनिटी के या अलग अलग विचारधारा के, क्योंकि वो एक सिंगल पर्पस को क्या करते हैं या एक सिंगल इंटरेस्ट को डिफेंड करना चाहते हैं. टू यूनाइट इन ऑर्डर टू डिफेंड अ कॉमन इंटरेस्ट. ठीक है, जैसे अगर मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करूं, ठीक है, गांधी एरा के, तो सब लोग क्या हो गए? दे ऑल क्लोज रैंक्स, मतलब आपस में यूनाइट हो गए एक पर्पस के लिए. ठीक है, या नेटो की बात कर लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, 32 कंट्रीज हैं उसमें. तो क्या करती हैं? बेसिकली अलग अलग कंट्रीज है लेकिन साथ में डिफेंड करती हैं. ठीक है, आपस में एक दूसरे को, कि कोई भी अगर हमला करेगा नेटो की किसी भी कंट्री पे, तो हम एक साथ यूनाइटेड होके सामने वाले पे रिटेलिएट करेंगे. ठीक है, ये भी करा हुआ है क्लास में. बी अंडर अ क्लाउड इज टू बी अंडर सस्पिशन. शक के घेरे में होना. ठीक है, सो द ऑब्जेक्ट ऑफ सस्पिशन. टू बी फिल्ड विद ग्लूम. ग्लूम क्या होता है? ग्लूम होता है सैडनेस. ठीक है, टू ऑपरेट एज एन अंडरकवर एजेंट टू हाइड वंस मिस्टेक्स. नो, अपनी बुरी करतूतें छुपाना नहीं. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 50. 50 तक कर लिया, 51 करते हैं. अभी पहले डायरेक्शंस ध्यान से पढ़िए. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट. स्टूडेंट्स, यहां मैंने आपको गलती करते हुए देखा है. कई बार आप इतने एक्साइटेड होते हैं या नर्वस होते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फीलिंग आप पे ओवरपावर हो सकती है. ऐसे में आप कई बार डायरेक्शंस को निग्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, अभी आपसे पहले सिनोनिम्स पूछे थे, अब आपसे पूछे हैं ऑपोजिट्स दैट आर एंटोनिम्स. सो करते हैं. सबसे पहले कंटेम्पचुअस, डिजर्विंग हेट. ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आप किसी चीज से नफरत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा घृणा कर रहे हैं क्योंकि वो वस्तु या वो जो व्यक्ति है वो कंटेम्पचुअस है. ठीक है, इसका उल्टा क्या जाएगा? रेवरेंशियल. रेवरेंशियल का मतलब है रिस्पेक्टेबल, जिसको बहुत इज्जत, बहुत ही प्रेज दी जानी चाहिए, क्योंकि हमें एंटोनिम करना है इसीलिए. इसका मतलब होता है घमंडी, समवन हु इज वेरी एरोगेंट. पैट्रनाइजिंग का मतलब दूसरों को कम आंकना, सुपीरियर खुद को महसूस करना. ठीक है, और एरोगेंट तो वही है, दैट इज कॉन्डिसेंडिंग. ठीक है, सोशल मीडिया ट्रेंड्स आर एफीमेरल. जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं ये कैसे हैं? ये बड़े शॉर्ट लिव्ड हैं. मतलब ये बहुत ही जल्दी आते हैं और चले भी जाते हैं. इसका ऑपोजिट देखिए क्या होगा? समथिंग विच इज वेरी मच परमानेंट. अब ढूंढिए परमानेंट को. दैट इज एवरलास्टिंग, विच इज द राइट आंसर, बिकॉज इवेनेसेंट, ट्रांजिएंट और फ्लीटिंग का मतलब होता है जो बहुत जल्दी क्या हो जाए? पास हो जाए. So something which is very much temporary. Each and every word we have done in the class. So this time the paper was especially for CDS so easy. Even I say this thing on behalf of being an English faculty, that the paper of NDA was a bit difficult, and that's a very good thing because it will screen out the candidates who are not eligible enough to be there for the SSB. But yes, when it comes to the CDS examination, paper was good. Okay, papers was really good. Even the words are really easy, not that tough. Let's do the next one again. Parsimonious, you have done in the class as well. Someone who is very much frugal, someone who is very much economical. कंजूस होता है जो बहुत ही thrifty होता है, बहुत ही स्क्रिम्पी होता है. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एंटोनिम. तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा लग्जरी करता है, खर्चा करता है. ठीक है, इन सभी शब्दों का कहीं ना कहीं मतलब होता है जो बहुत ही सोच समझ के क्या करता है? पैसों को खर्च करता है, मतलब कंजूसी करता है. ठीक है, बट द राइट आंसर इज एक्स्ट्रावेगेंट. चलिए, रमेश हैज अ टेम्पेस्चुअस रिलेशनशिप. दैट इज ट्यूमुल्टस, दैट इज बेलिजरेंट, दैट इज राइटियस. इन तीनों का मतलब, जो कि आंसर बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि तीनों इसके सिनोनिम है, दैट इज लड़ाकू.
बेलिजरेंट का क्या मतलब है? समथिंग विच कॉजेस फाइट, राइट? लड़ाकू, तो भाई टिमल्टस, बेलिजरेंट एंड राइटस तो इसके सिनोनिम हो गए व्हाट इज ट्रैंक्विल, काम एंड कंपोज्ड। लेकिन उनका रिश्ता कैसा था? उनका रिश्ता तो इतना ज्यादा मतलब फाइट होती थी कि क्या हो गया, मतलब नेबर्स को पता, सॉरी रमेश का रिश्ता नेबर्स के साथ बहुत ही कैसा था, बिगड़ा हुआ था। बट हमें ऑपोजिट ढूंढना है, दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज ट्रैंक्विल। 55 कर लेते हैं। अरविंद हैड एन आर्डुअस टास्क, आर्डुअस इज रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, a task which is very difficult, ठीक है, a task which is very much strenuous, onerous, these all are synonyms, but what we need to answer, we need to answer the antonym, something which is very easy, something which is very effortless। एनडीए में अभी एक idiom भी आया है, walking on the cake, what is the meaning of walking on the cake? मतलब something which is very easy, ठीक है। चलिए let's move towards the question number 56। Malaika has been in a perpetual dilemma, perpetual जो कभी खत्म ही नहीं होता, never ending, या आप इसको बोल सकते हैं everlasting, eternal भी बोल सकते हैं, लेकिन continuous भी बोल सकते हैं। unceasing, cease मतलब stop, unceasing which is not stopping। the right answer is transitory, transitory means short lived, because हमें क्या मार्क करना है, antonym, इसीलिए antonym जाएगा जो एकदम से आए और vanish भी हो जाए। they were distraught on receiving the news, they were sad, they were disappointed, परेशान थे, annoyed थे, flustered थे, confused, rattled थे, perturbed थे, दोनों का मतलब disturbed। These three are synonyms of distraught, but this is the antonym and that's why this is the right answer, that is calm and happy, जब आप बहुत peace में हैं, बहुत शांत हैं। 58, she is considered to be a demure by her family members, someone who is very shy, someone who is very calm, introvert sort of person, but what is the opposite? Someone who is openly shameless, जिसमें कोई शर्म नहीं है, कोई hesitation नहीं है, कोई हया नहीं है, ठीक है। brazen, modest, sedate और solemn तो उसके क्या है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आप बहुत ही सीरियस है, बहुत ही काम है, कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। मोडेस्ट आप पता ही, वेरी हम्बल। सीडेट मतलब सीडेट किया जाता है ना एनिमल्स को, कोई दवा खिलाई जाती है शांत कराने के लिए या कुछ भी करने के लिए, दैट इज शांत, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ब्रेजन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 59 and 60, द लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ एंटोनिम्स। व्हाट डू दे से? what he got by the way of settlement was a pittance, pittance is the meager, very scarce amount of something, ठीक है, बहुत ही थोड़ी, बहुत ही कम। there is a one word for this very important word, modicum, very limited, okay। so installment नहीं होगा, minuscule amount, petty amount, क्योंकि ये तो synonym है। the right answer is when you get something in abundance, that is bonanza। आज तो क्या लग गया, bonanza हाथ लग गया, ठीक है, लॉटरी लग गई हाथ में। his academic papers often are viewed as being ponderous, see ponderous is something which is very awkward, which is very clumsy, भद्दा, which brings you disgrace, but हमें चाहिए उसका opposite, that is something very charming, very much alluring, very much inciting, that is very much elegant, entice कर दे, जो बहुत ही attract कर दे, ठीक है। informative, difficult या profound, profound मतलब तो famous होता है, ठीक है। so we have done so far half, we have solved the half paper of CDS because there are 120 questions. let's proceed towards the other 120 questions, students, okay। Okay, now again they're changing the directions. Each of the following sentence has an underlined word. Read each sentence carefully and determine which word class the underlined word belongs to. See, हमने part of speech करी और हमने बहुत सारे questions solve करे थे कि recognize the given part of speech. How many parts of speech are there? There are 8 parts of speech. पहली है noun, फिर दूसरी pronoun, तीसरी adjective, चौथी verb, पांचवी एडवर्ब, छठी प्रेपोजिशन, सातवीं कंजंक्शन और आठवीं इंटरजेक्शन, राइट स्टूडेंट्स। उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। जब आप इनके रूल्स अच्छे से पढ़ेंगे, जब आप हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, दिस क्वेश्चन विल बी यू नो केक वॉक फॉर यू, वेरी इजी, ओके। सो हु केम फर्स्ट, अब देखो वर्ब है ना, ये V2 फॉर्म है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब 3 चीजों को क्वालिफाई करता है, वर्ब को, दूसरी एडवर्ब्स को और एडजेक्टिव्स को, तो यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई करा जा रहा है। द राइट आंसर इज एडवर्ब, ठीक है। हु केम फर्स्ट इन द रेस, ठीक है।
तो द राइट आंसर इज एडवर्ब. 62 इट इज ऑब्लिगेटरी. ठीक है. इट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में नाउन या प्रोनाउन. अच्छा ये क्या है? अच्छा सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. इस केस में क्या है हमारा सब्जेक्ट? प्रोनाउन. और प्रोनाउन या नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव्स होते हैं. राइट आंसर इज एडजेक्टिव. टर्न राइट. टर्न वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. द राइट आंसर इज अगेन एडवर्ब. एडवर्ब हो गया. ठीक है. अगला क्या है? स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. अब देखिए कुछ स्टूडेंट शायद इसको वर्ब मार्क करेंगे. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि उन्हें लगेगा वर्ब भी तो है जो आईएनजी पे खत्म होती है. दैट्स ट्रू. तब तो ये मेन वर्ब का काम कर रही होती है, जिसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं. ठीक है. लेकिन कई बार वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में किसका काम करती है? नाउन का काम करती है. And when a verb in its ing form performs like a noun, it is gerund. यहां पे क्या कोई एक्शन हो रहा है स्विमिंग का? नहीं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए वर्ब नहीं है. इनफैक्ट ये एक एक्ट है, तैरना. दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज जेरंड. अब नाउन भी मत लगाइएगा. नाउन तो नेमिंग वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि पर्सन, प्लेस या थिंग, नेमिंग वर्ड्स. लेकिन जो वर्ब नाउन की तरह एक्ट करे तो नाउन थोड़ी बन गई है, तो वर्ब भी वो अभी भी आईएनजी फॉर्म में है लेकिन बिहेव नाउन की तरह करके, तो उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है विच इज जेरंड. My arms are aching terribly. Aching क्या है स्टूडेंट्स? वर्ब है और बहुत ही बुरी तरीके से दर्द हो रहा है उसको. ठीक है. aching का मतलब ही दर्द होना होता है, और दर्द भी कैसा हो रहा है? बहुत बुरा, टेरिबल दर्द हो रहा है. टेरिबली, मोस्ट द वर्ड्स एंडिंग विद ly, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर एडवर्ब्स. ओके. यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए यही आंसर है. ओके. 5 more questions of based on such types. The local council could not finance. देखिए could क्या है स्टूडेंट? एक मॉडल, और मैंने आपको पढ़ाया था कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसको V1 बोलते हैं. तो could not finance. फाइनेंस वैसे तो नाउन भी है, बट फाइनेंस वर्ब का भी काम करता है. सो द राइट आंसर इज ब्राउन. Okay, let's do the next question. It says we met a lot of interesting people during. क्या पढ़ाया था मैंने आपको प्रेप के बारे में? ये बेसिकली डायरेक्शन, टाइम, सोर्स, प्लेस, लोकेशन, इन सब का आइडिया देते हैं. ये किसके पहले आते हैं? नाउन के पहले आते हैं. ठीक है. क्या होते हैं? और प्रेपोजिशन अंडर, इन, ऑन, एट, ऑफ. ठीक है. अबव, बिलो, बीनीथ, ड्यूरिंग, सिंस. ठीक है. तो द राइट आंसर इज प्रेपोजिशन. विकी रिफ्यूज टू जॉइन द ट्रैक टू द हिल्स बिकॉज ही इज अफ्रेड. फिर से देखिए ऑफ एक प्रेप है, और प्रेप के बाद हमेशा नाउन आता है. उसको किससे डर लगता है? ऊंचाई से डर लगता है. सो द राइट आंसर इज चार्ली. ऊंचाई. ऑलराइट स्टूडेंट्स, चार्ली इज द राइट आंसर. Let's move towards question number 69. The number of boxes sold, जो boxes बिके, left from, मतलब पहले तो कितने बिके? 19,400, बट अब कितने बिक गए हैं? 33,542. Now listen to me very carefully. This is the V2 form of verb leap. Left. ठीक है. What happened? So the right answer is easy था, बहुत easy था. Amar ensured the timely delivery of the product. उसने क्या इंश्योर करा? अब नाउ डिलीवरी, कैसी डिलीवरी? अब डिलीवरी क्या है? नाउन. नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले एडजेक्टिव. अब कुछ स्टूडेंट्स जो जल्दबाजी करके आएंगे, या कुछ स्टूडेंट जिन्होंने सरफिशियल पढ़ाई की है, चीजें रटी हुई हैं, वो सोचेंगे इट्स एंडिंग विद ly, सो मैं इसको एडवर्ब मार्क करके आता हूं. नो, दिस इज रॉन्ग. डिलीवरी क्या है? नाउन है. कैसी डिलीवरी? जो समय पे हो. सो द राइट आंसर इज ब्रावो. ओके स्टूडेंट्स, पढ़िए आप डायरेक्शन. लेट्स स्टार्ट दिस set of questions starting from 71 to 80. 10 questions based on fill-ups.
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले इस बात पे ध्यान रखना है आपको, सीधे ब्लैंक को देख के आंसर की तरफ जंप नहीं करना है। सबसे पहले आपको काम होकर जितने भी गिवन वर्ड्स हैं उनका असेंस समझना है, जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है। अब एक फ्रेजल वर्ब है अवेलेबल ऑन, दैट इज टू बी प्रेजेंट समवेयर। और फ्रेजल वर्ब्स मैंने आपको कराए भी थे। व्हेन अ वर्ब इज फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा था आपको, बिकॉज इस पे बेस्ड बहुत से स्पॉटिंग एरर्स की और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें दो पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से आपको पढ़नी है, एक तो वर्ब और एक प्रेपोजिशन, ठीक है। तो भाई वही क्वेश्चन आ गया, वर्ब लगा के दी थी आपको, बेसिकली क्या करना था, उसके बाद यूज होने वाला प्रेप ढूंढना था। तो द राइट आंसर इज अवेलेबल ऑन, आपने सुना भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई डोंट वॉन्ट डैश मोर वेजिटेबल, ठीक है। अब ये तो बहुत इजीली हो सकता है, वैसे तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी आता है, ठीक है। तो एक तो ये भी तरीका था, मैंने आपको पढ़ाया था दो एडजेक्टिव्स के बारे में, एक सम होता है और एक एनी। सम कहाँ आता है, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, जैसे प्लीज गिव मी सम वाटर, या जब आप असर्टिव सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे आई गॉट सम गोल्ड। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होता है, एंडिंग विद फुल स्टॉप, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस। एनी जब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट, जहां पे आप क्वेश्चन मार्क पूछते हैं। और इसका दूसरा यूसेज क्या है एनी का, पहला यूसेज तो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करना, दूसरा यूसेज है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नॉट है, आई डू नॉट वांट एनी मोर वेजिटेबल, मुझे और वेजिटेबल नहीं चाहिए, ठीक है। वन मोर वेजिटेबल्स, वन तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल नाउन है, ठीक है। मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जैसे कि एडवाइस, लव, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। मैनी आता है काउंटेबल के लिए, जैसे कि स्टूडेंट्स, टीचर्स एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए, एनी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, ये भी क्लास में मैंने आई थिंक 4 to 5 टाइम्स आपको एम्फेसिस करके याद करवाया है, बहुत जरूरी है ये। अगर आप किसी के साइड में बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अभी आके इस बोर्ड के साइड में खड़ी हो जाऊं, आई एम स्टैंडिंग बिसाइड दिस बोर्ड, ऑलराइट। तो बिसाइड मतलब एडजेसेंट, और बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, इसके अलावा। यहां पे ना अगर एक्सेप्ट होता तो ये शायद आंसर हो सकता था, बट यहाँ तो एक्सपेक्ट दिया हुआ है ना, इंस्टेड के बाद तो ऑफ आता है। द राइट आंसर इज बिसाइड्स। व्हाट अदर स्पोर्ट्स डू यू प्ले बिसाइड्स हॉकी, हॉकी के साइड में थोड़ी, हॉकी के एडजेसेंट थोड़ी, हॉकी के अलावा, दैट इज इन एडिशन टू हॉकी, ठीक है। आई कॉल द ऑफिस 2 or 3 times but dash time no one responded। हालांकि ये कॉल्ड अप होना चाहिए क्योंकि ऐसा लग रहा है टेलीफोन किया है, उसके लिए सही फ्रेजल वर्ब है कॉल अप। बट एनीवे, आई कॉल्ड द ऑफिस 2 or 3 times, मैंने ऑफिस में 2 से 3 बार कॉल की, बट डैश टाइम नो वन रिस्पॉन्डेड। बट हर, अच्छा ईच मतलब 1 at a टाइम, लेकिन हर बार किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। एनी टाइम नहीं होगा, ये तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आएगा, ठीक है। सम टाइम भी नहीं होगा, ये पॉजिटिव के लिए आएगा, असर्टिव के लिए आएगा। बट ऑल टाइम नहीं, ऑल के बाद हमेशा एक प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है। और जैसे ऑल स्टूडेंट्स, ऑल टीचर्स, तो नहीं, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, टाइम है, ईच आएगा, बट ईच टाइम नो वन रिस्पॉन्ड। You can park on dash side of the street। अब कितनी साइड्स होती हैं बताइए, एक स्ट्रीट है, एक रोड है, कितनी साइड्स हैं, साइड 1, साइड 2। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्टूडेंट, नाइदर भी 2 के लिए आता है, आइदर भी 2 के लिए आता है। 2 से ज्यादा हो जाए तो नाइदर के लिए जगह नन यूज करेंगे, 2 से ज्यादा हो जाए आइदर के लिए एनी यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, आइदर मतलब दोनों में से एक। तो ये बोल रहा है यू कैन पार्क ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, या तो साइड के इस पार पार्क कर दो अपनी गाड़ी, या इस तरफ पार्क कर दो, ठीक है, अपनी कार को, तो आइदर आएगा। चलिए 76 करते हैं। आई एम नॉट स्पीकिंग टू रवि, आई हैव डैश आउट विद हिम। फिर से एक फ्रेजल वर्ब मिल गया है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट,
फ्रेजल वर्ब मतलब पहले वर्ब आएगी और वर्ब के बाद एक प्रेपोजिशन आएगी। आपको मैंने क्लास में कराया था, देखो फॉल बैक ऑन का मतलब होता है किसी पे डिपेंड करना, ठीक है। फॉल अवे नहीं आएगा, गिर जाना। फॉल थ्रू नहीं आएगा, फॉल आउट। ये मैंने पहले भी कराया था, जब रिश्ते में क्या आ जाती है, दरार आ जाती है, लड़ाई हो जाती है। फॉल आउट मीनिंग्स टू फाइट और टू एंड अ रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, रवि से बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसने रवि से क्या कर दिया, लड़ाई कर दी है, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, आई टोल्ड यू दिस विल कम इन योर एग्जाम एंड दिस टाइम इट वाज देयर, ओके, इंपॉर्टेंट। Next is Dr. Kumar is very busy with her practice. कोई लेडी है ये, ठीक है, और she has dash time for other things. अब देखिए, few मतलब negative, next to nothing, ठीक है, next to nothing। लेकिन मैंने आपको क्या पढ़ाया है स्टूडेंट्स, few तो आता है काउंटेबल नाउन के लिए ना, और टाइम क्या है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के लिए फ्यू की जगह, थोड़े की जगह क्या आता है, फ्यू नहीं आता ना, लिटिल आता है। अब देखो लिटिल मतलब ना के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा। अभी वो बहुत बिजी है ना, इसका मतलब उनके पास ना के बराबर टाइम है, शी हैज लिटिल टाइम। अगर आप आर्टिकल लगा दोगे, इनडेफिनेट आर्टिकल अ लगा दोगे, इसका मतलब उनके पास थोड़ा टाइम है। अ लिटिल मतलब थोड़ा टाइम होना, लेकिन सेंस क्या है सेंटेंस का, बहुत बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है। That's why the answer is Charlie. Good question. करा था आर्टिकल्स के रूल में और एडजेक्टिव्स में भी। हरीश wanted to report on the war dash the danger in war. डेंजर होने के बावजूद भी, और के बावजूद के लिए क्या आता है, या तो डेस्पाइट आता है, और डेस्पाइट आएगा तो डेस्पाइट के बाद ऑफ कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा। डेस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, दोनों ही कंजंक्शन है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का मतलब है के बावजूद, अपार्ट फ्रॉम दैट कंडीशन ऑल्सो, उसने क्या करा, रिपोर्ट किया वॉर, ठीक है। दो नहीं आएगा, ऑल दो नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि ये भी कॉन्ट्रडिक्शन के लिए ही आता है कंजंक्शन, बट यहां पे दिस इज नॉट फिट, इवन दो भी नहीं आएगा, ठीक है। और मैं ये बता दूं, ये एक प्रेपोजिशनल फेज है। अक्सर जब भी आपको, मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन आते ही कहां पे, नाउन से पहले। आप ऐसे भी कर सकते थे, मैम बाकी क्यों नहीं सही है, बाकी भी तो कॉन्ट्रडिक्शन लेकर आते हैं, बट बाकी अपने पास सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट ढूंढते हैं, जबकि प्रेपोजिशनल फ्रेज को अपने बाद एक नाउन चाहिए, ठीक है। इसीलिए द आंसर इज इन स्पाइट ऑफ। लेट्स डू द लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ द fill in the blanks. Dash student could tell you where the college library is located. आपको कोई भी बता देगा, यही तो सेंस है। अगर देखो ऑल होता स्टूडेंट्स तो प्लूरल वर्ब आती, सॉरी प्लूरल नाउन आती ना, सब्जेक्ट आता, मतलब सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख रहे हैं क्या है, नाउन है, तो मुझे तो इसके बाद एक प्लूरल नाउन चाहिए थी। यहाँ पे तो लेकिन सिंगुलर है तो ऑल नहीं आएगा, सम के बाद भी, और सम अक्सर अनकाउंटेबल के लिए आता है। जैसे ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन, फ्यू मतलब ना के बराबर, ना के बराबर स्टूडेंट आपको बताएंगे नहीं, कोई भी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट को टेल यू, ठीक है। दिस इज वेरी इजी, आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स आर वेरी वेरी इजी। एक एक रूल किया हुआ है आप लोगों ने, तो इतना टफ रहा नहीं होगा फॉर योर एग्जाम, या आगे भी अगर एग्जाम आएंगे। द टू ग्रुप्स एंटर्ड डैश, देखो जब भी हम किसी रिलेशनशिप में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी डील या किसी डिस्कशन में एंटर करते हैं, तो कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज होती है, एंटर इनटू। सो द राइट आंसर इज, ना कि एंटर अनटू, एट या इन। सब के सब सारे fill in the blank students were based on preposition, okay, each and everything. How many questions we have done so far? 80. How many we are left with? The 40. Take a 1-minute break and then we'll do all the 40 questions as well with all the right answers. अब फिर से डायरेक्शंस पढ़िए पहले। डायरेक्शन के पहले मैं ही आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपको पढ़ाया भी है होमोनिम्स के बारे में।
आप देख सकते हैं दे आर वेरी सिमिलर इन साउंड, राइट, बट द मीनिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। ये इसी तरीके के क्वेश्चन अभी हमने क्लास की शुरुआत में भी करे थे जब हमने पॉन्टून और प्लेटून वाला क्वेश्चन करा था, राइट, इन्वोक रिवोक। सो कहीं ना कहीं वो भी सेट ऑफ होमोनिम्स थे, उनका यूसेज पूछा हुआ था, आई मीन उनकी डेफिनेशन पूछी हुई थी कि सिंपली उनकी डेफिनेशन बताइए। दिस टाइम इन्होंने फिर से होमोनिम्स के 10 क्वेश्चंस दिए हैं, बट पूछा क्या है आपसे, यूसेज। तो मतलब ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको मीनिंग तो पता ही होगा बिकॉज दीज वर्ड्स आर वेरी इजी, बट आपको क्या भी पता होना चाहिए इनका यूसेज, क्या ये सही तरीके से यूज हुए भी हैं, अगर हुए हैं तो स्टेटमेंट जो सही है वो सही है, जो नहीं है वो ऑप्शन मत सिलेक्ट करिए। ठीक है, एक बार देखते हैं। इन द फॉलोइंग आइटम्स similar sounding words are given followed by sentences wherein in each sentence one of these words has been used and underlined. You are required to select those sentences in which these words have been used most appropriately and mark your response on the answer sheet. चलिए मैं आपको पहले सबका मतलब बताती हूँ। क्रॉप तो आप भी जानते हैं, बचपन से पढ़ा हुआ है आपने, दैट इज फसल, राइट, एंड इसको बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं। इफ यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी मेक श्योर द प्रोनाउंसिएशन इज कोर, कोर ना कि कॉप्स, ठीक है, कोर होता है ये। कोर क्या होता है, ग्रुप ऑफ मिलिट्री पीपल। एंड व्हाट इज कॉप्स, कॉप्स क्या होता है, कॉप्स, कॉप्स होती है डेड बॉडी, डेड बॉडी। अब देखते हैं कौन सा फिट है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोइंग जीएम क्रॉप्स, बिल्कुल ठीक है भाई, जीएम क्रॉप्स उगाने, फसल उगाने से क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये तो ठीक है। द वॉलंटियर कोर वाज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप, बिल्कुल, द वॉलंटियर जो खुद से क्या है आगे बढ़ के आई है, ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ मिलिट्री पीपल, वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करेगी। इस वर्ड का यूसेज बिल्कुल सही है। ही वाज स्लीपिंग लाइक अ कॉर्प्स, वो एक डेड बॉडी की तरह सो रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा नींद में है, तो ये भी ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस है जो कि करेक्टली यूज हुआ है, तीनों करेक्टली यूज हुए हैं, द राइट आंसर इज डी। ऐसे इन क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करना है, ठीक है। 82 देखते हैं। सेंसर, सेंसर, सेंश्योर, यू हैव डन इट, ठीक है। देखो सेंसर होता है एक, इट्स अ सॉर्ट ऑफ स्टैंड, जिससे क्या निकलता है, स्टैंड पे ना बेसिकली कोई भी ऐसी जलती हुई चीज रखी जाती है जिससे धुआं आता है, जिससे फ्लेम्स आती है। सेंसर का मतलब होता है कट करना। आपने देखा ना सेंसर बोर्ड होता है इंडिया का, जो मूवीज में से कुछ ऐसे सीन्स कट करता है जो यू नो स्पेक्टेटर्स या दर्शक के लिए सही नहीं है, ठीक है। और सेंश्योर मतलब किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना। देखते हैं कौन कौन से सही तरीके से यूज। द न्यूज रिपोर्ट्स हैव बीन हेविली सेंसर्ड, बिल्कुल, कुछ न्यूज रिपोर्ट्स को क्या करा गया है, सेंसर्ड, मतलब उनको कट कर दिया गया है, उन रिपोर्ट्स को हटा दिया गया है कट करके, ठीक है, वो नहीं सुनाई जाएंगी या दिखाई जाएंगी किसी भी स्पेक्टेटर को। ये तो ठीक लग रहा है। द सेंश्योर बोर्ड, नो ये तो गलत हो गया ना स्टूडेंट, कौन सा बोर्ड, ये सेंसर बोर्ड होता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। इंसेंस वाज राफ्टिंग आउट ऑफ द सेंसर, बिल्कुल, सेंसर उस स्टैंड से क्या निकल के आ रहा है, धुआं निकल के आ रहा है। राफ्टिंग आउट इज कमिंग आउट कैरिड बाय द प्रीस्ट, पुजारी ने जो सेंसर पकड़ा हुआ है उससे क्या निकल के आ रहा है, सेंस, इंसेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। चलो तो ये तो भाई बिल्कुल सही है। देखो 2 सही नहीं है तो ये 2 वाले ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऐसे करके भी कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको सारे नहीं आते, ठीक है, आप रीजनिंग की हेल्प से भी इनको सॉल्व कर सकते हो। हालांकि अभी तो हमें आंसर पता है, दैट इज 1 and 3 ओनली, ठीक है। सेकंड हमारा इनकरेक्ट हो गया। चलिए 83 करते हैं, बहुत आसान है। जोड़ा, ठीक है, ये तो बचपन से पढ़ा है। पैर, ठीक है, आपके पास है पेयर ऑफ हैंड्स, देन यू हैव पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है, पेयर ऑफ आईज। पैर, व्हाट इज दिस, दैट्स अ फ्रूट, नाशपाती बोलते हैं इसको, राइट। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत पाई जाती है, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में पाई जाने वाला एक बहुत ही अच्छा फल है। एंड व्हाट इज पैर, पैर मतलब बहुत मीनिंग होते हैं वैसे इसके, जैसे अगर आप अपने बालों को पैर कर रहे हैं, दैट इज ट्रिम कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। या अगर आप गार्डनिंग करते हैं, जो पत्ते सूख जाते हैं, आप उनकी पेयरिंग करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। माई लास्ट पेयर ऑफ जीन्स, ये तो बिल्कुल सही है, सही लगा हुआ है, ठीक है। डिजर्ट, डिजर्ट क्या होता है, जो खाने के बाद आप एक स्वीट डिश लेते हैं, वाज अ डिलिशियस पेयर कस्टर्ड, बिल्कुल, नाशपाती का एक कस्टर्ड बनाया था, इस फ्रूट कस्टर्ड बनाया था जो कि बहुत डिलिशियस था। दे हैड टू पेयर दी नॉवल डाउन, बिल्कुल, नॉवल में कुछ ऐसा है जो उनको कट करना है, ठीक है, क्योंकि उनको एक 2
आर्ट फिल्म बनानी है तो नॉवल के कुछ हिस्से को वो कट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सारे सही है, पूछा भी सही के बारे में, ये भी पढ़ लेना कई बार। इसको ये पता है क्या करेंगे, इन विच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो have the word been incorrectly used, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर इनकरेक्टली पूछा होता तो नीदर ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है, जो कि पूछा तो नहीं है बट याद रखिएगा। चलिए, अगर आपके डेस्टिनी की बात करें, किस्मत की बात करें, द वर्ड इज फेट। अगर बात करें एक आलिशान सेलिब्रेशन की, फूड जहां पे, या बहुत फन, या डांस, या सिंगिंग, ठीक है, ये तो बचपन से, आई थिंक आपने कॉलेज में तो फीट होती है ऑर्गेनाइज। एंड फेथ इज योर बिलीफ। लेट्स सी व्हिच वन इज राइट, व्हिच वन इज रॉन्ग। द वर्किंग कमिटी विल मीट टू डिस्कस द फीट ऑफ द एरिंग एम्प्लॉय। देखो कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जो बार बार गलतियां कर रहे हैं, एरिंग मीन्स गलती कर रहे हैं, तो उनकी किस्मत अब कौन डिसाइड करेगी, कमिटी की, उनको रखना है, उनको बाहर निकालना है, ठीक है, जॉब से। तो भाई फीट थोड़ी आएगा, क्या आना चाहिए, फेट। ये तो हो गया इनकरेक्ट। द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अ फेथ। स्टूडेंट्स कैसे किस्मत ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टूडेंट्स तो फीट ऑर्गेनाइज करेंगे, गलत हो गया। द अक्यूज्ड पर्सन हैज लॉस्ट फेथ इन द फेयरनेस ऑफ द जजमेंट। भाई अब किसी एक ऐसे इंसान पे आरोप लगा दिए गए हैं, उसे अक्यूज कर दिया गया है जो कि बिल्कुल गिल्टी है, तो अब उसका किससे विश्वास उठ गया है, उसका बिलीफ किससे उठ गया है, फेयरनेस ऑफ द जजमेंट से, ठीक है। चलिए, यही सही है, और पूछा भी क्या है, करेक्ट, थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 85. Where do we have 85? Here it is. Okay, bear, buyer. This is to tolerate. इसके वैसे बहुत मीनिंग है स्टूडेंट्स। एक तो होता है सहना, एक होता है कैरी करना, एक होता है बर्थ देना, जन्म देना, ठीक है। ये क्या होता है, नेकेड, आप बेयरफुट जर्नी करते हैं ना किसी भी रिलीजियस प्लेस पे। और ये क्या होता है, ये बेसिकली एक फोर व्हील्ड कार्ट होती है जिसपे कोई चीज बेची जाती है या डेड बॉडी को कैरी करके ले जाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बायर। चलिए देखते हैं कौन सा सही है, कौन सा सही। शी कुड नॉट बेयर द एक्सट्रीम हीट ऑफ दिल्ली। वो टॉलरेट नहीं कर पा रही ना, बट वर्ड तो गलत है, बियर आना चाहिए था यहाँ पे। तो इसको देखो, अमेरिकन एक्सेंट में बियर बोला जाता है, तो अगर आप बियर बोल रहे हैं तब भी सही है। अगर आप बेयर बोल रहे हैं तो ये आपका ब्रिटिश एक्सेंट है। हर वर्ड के दो एक्सेंट है। एक्सेंट तो और भी है, बिकॉज कई बार फॉरेन वर्ड्स के भी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एक्सेंट होते हैं, और इन इंग्लिश वर्ड्स को भी कई बार अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करती है, बट द टू widely spoken pronunciation are American and British. So if you want to use American, your choice, या British, all right. So क्या करेगी, एक्सट्रीम हीट को बेयर करेगी, ठीक है, सहन करेगी, बट गलत है यूसेज। द वॉल्स ऑफ द स्टोर लुक्ड, कैसे दिख रहे थे वॉल्स, नेकेड दिख रहे थे। क्यों नेकेड दिख रहे थे, क्योंकि जितनी भी पेंटिंग्स लगी हुई थी वॉल्स पे उनको बेच दिया। तो ऐसा तो आपके साथ भी होता होगा ना, जब आप घर को शिफ्ट करते हैं लेट्स से, और घर का सारा सामान जब आप पैक कर लेते हैं तो घर देखना कैसा दिखाई देता है, एकदम नेकेड दिखाई देता है, खाली खाली दिखाई देता है। इनफैक्ट एको बहुत सुनाई देता होगा आपको, राइट। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे तो बेयर आना चाहिए था, बट बियर लिखा हुआ है। द बॉडी वॉज प्लेस्ड ऑन अ बायर, ये सही है। बॉडी को कहाँ पे रखा गया, बायर पे। फ्यूनरल मतलब फ्यूनरल हो रहा है, ठीक है, किसी की क्या हो रही है, फ्यूनरल क्या होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद जो सेरेमनी होती है, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, ताकि जो दिव्यांगत आत्मा है उसको पीस मिले। तो डेड बॉडी को कहाँ रखा गया, बायर में। बस एक ही सही है ना, पूछा भी हमसे करेक्ट ही है, डी। ये तो बहुत इजी थे स्टूडेंट्स, तभी इनके मीनिंग नहीं पूछे, इनका सीधे यूसेज पूछा आपसे। थोड़ा सा ट्रिकी वे है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टायर्स की, ठीक है, जो कि बेसिकली व्हील्स होते हैं किसी भी गाड़ी के, जो प्रॉपर रबर के टायर्स होते हैं ना, व्हीकल के, साइकिल के, किसी के भी, राइट। तो ये तो इजी है, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स टीयर बोलते हैं। टीयर मतलब होती है लेवल। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना फर्स्ट एसी, तो 3 टीयर्स है ना, 3 क्या है तो 4-5, जैसे कि कौन कौन से बर्थ्स होती हैं या कौन कौन से टीयर्स होते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक। एक तो होता है फर्स्ट ईयर एसी, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर आता है आपका एक वो रिजर्व्ड, और एक आता है जनरल, राइट, मतलब स्लीपर एंड देन जनरल। तो ये 4-5 टीयर्स होते हैं। टीयर्स आर द लेवल्स, एंड टायर इज टायर्ड से बना हुआ है, वर्ब है जब कोई थका हुआ महसूस करे। देखते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं।
The headmaster appealed to the students not to tire the new schoolmaster unnecessarily. headmaster ने बोला कि ये जो नए मास्टर आए इनको थकाने की या इनको परेशान करने की, ना एग्जॉस्ट करने की जरूरत नहीं है. बट वर्ड गलत यूज हो गया यहाँ पे, तो मुझे ये वाला चाहिए था, 2+V1 फॉर्म चाहिए थी. वर्ब की बेस फॉर्म गलत हो गया. Our guest could not visit us yesterday as his car's tire. ये सही है, गाड़ी का टायर डैमेज हो गया, बीच में गाड़ी क्या हो गई, द कार ब्रोक डाउन इन बिटवीन. ब्रोक डाउन का एक तो मतलब होता है रो देना, इमोशनल कोलैप्स, और ब्रोक डाउन का दूसरा मतलब मैंने आपको पढ़ाया है, दैट इज टेक्निकल फेलियर, जब गाड़ी में पंक्चर हो जाए या गाड़ी खराब हो जाए. ठीक है, चलिए. माई अंकल लिव्स ऑन दी 3rd, बिल्डिंग के 3rd लेवल पे रहता है ना, टायर, और इसको बोलते भी क्या है, टीयर. ठीक है, ये टीयर है, ये टायर है, और ये भी टायर है, तो कुछ लोग इसको टायर बोलते हैं. नो, इट्स टीयर. कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं, 3rd टीयर में रहते हैं. ठीक है, 2 गलत, 1 सही. सही भी कौन सा, सिर्फ 4. ओके स्टूडेंट्स, गुड क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग. 87 सॉल्व करते हैं. अगेन ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लास, ऑल द क्वेश्चंस. ये पेपर तो अच्छा जाना ही चाहिए जिन्होंने अटेम्प्ट किया है. साइट मतलब होता है किसी चीज का रेफरेंस देना, टू रेफर समथिंग, टू कोट समथिंग. साइट मतलब दृष्टि, वेरी वेल नो, एंड ये वाली साइट लोकेशन, टू सी. चलिए देखते हैं, बहुत इजी, कौन सा सही कौन सा गलत. द ऑफिसर हैज लेफ्ट फॉर अ वीकली इंस्पेक्शन. वीकली इंस्पेक्शन करने किसी लोकेशन पे जाएंगे ना, किसी साइट पे जाएंगे, SIT साइट पे जाएंगे स्टूडेंट्स, तो गलत हो गया. द फ्रेश फ्लावर्स एट द डेस्क मेड फॉर अ प्रिटी, ये सही है. डेस्क पे फ्लावर्स रखे हुए हैं, फ्रेश फ्लावर्स रखे हुए हैं, और ये बहुत ही सुंदर देखने का एक व्यू है, साइट है, व्यू है, दृष्टि है, ये ठीक है. जर्नलिस्ट शुड साइट, नो, शुड साइट देयर सोर्सेज, मतलब उन्हें रेफर, अपना वो कोट करते हैं अपने सोर्सेज, तो उन्हें एक्यूरेटली करना चाहिए. एक ही सही है, 2 ही सही है. ब्रावो इज द राइट आंसर. अगेन 88, वेरी इजी. इट इज एक्सपेक्टेड दैट द यंग, अच्छा ये क्या होता है, पहले तो मैं मतलब बता दूं, ये होता है डिस्ट्रॉय करना, जैसे इजराइल और ईरान एक दूसरे की बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मिलिट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं. रेज कर रहे हैं, रेज मतलब बड़ा करना, और रेज क्या होती है, यू वेरी वेल नो इट, जो एमिट होती है ना, किरणें, सन की या किसी भी लाइट की रेज. ठीक है, चलो अब देखते हैं. ये हो गया टू इंक्रीज, और इट्स द वेव्स दैट बेसिकली यू एमिट और सन एमिट्स. It is expected that the young executives will ask for a नहीं, वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी में क्या हो, कुछ रेज हो, थोड़ी बढ़ जाए. The plan proposes to raise the colonial building, नहीं, and to construct. colonial building को पहले तो क्या करा जाएगा, डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें एक मेमोरियल बनाएंगे. The heat rays emanated is to come out. ये भी करा हुआ वर्ड है, ठीक है, क्लास में, तो यही सही है, 3rd. इंफ्रारेड डिवाइस से क्या आ रही थी निकल के, किरणें आ रही थी, रेज आ रही थी. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 89. इन दोनों के साथ एक और आता है, इंपॉर्टेंट है, आइडियल. आइडियल कंडीशन मतलब यूजफुल और बेनिफिशियल, हालांकि इस बार ये नहीं आया. ये होता है टू सिट फ्री, कुछ नहीं है करने को, यू हैव नथिंग टू डू. आइडल मतलब 2 मीनिंग है स्टूडेंट्स, एक तो स्टैचू, मूर्ति, और एक मोटिवेशन के जो सोर्स होते हैं ना, जैसे कुछ लोग बोलते हैं माय आइडल इज विराट कोहली. ठीक है, और इडिल, इडिल इज अ वेरी गुड वर्ड. इडिल का मतलब होता है जब कोई चीज, खूबसूरत सी जगह को या खूबसूरत सी पेंटिंग को क्या करा जाता है, रेफर करा जाता है, तो उसको इडिल बोलते हैं. ठीक है, अभी समझ आ जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत. द राइटर्स वर्ड्स कंज्योर अप, दैट इज टू ब्रिंग अप द इडिल ऑफ अ बॉन्टीफुल एंड पीसफुल लैंड. तो दैट इज इडल, मैंने अभी बताया था ना, यहाँ पे इडल आना चाहिए था. दैट इज टू ब्रिंग समथिंग एक्साइटिंग. किसी चीज की जब याद आ जाती है ना, नॉस्टैल्जिया हो जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं, आप उसको इडल बोलते हैं. एन आइडल माइंड, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, तो एक इडियम भी है. एन आइडल माइंड, खाली दिमाग शैतान का घर. ठीक है, फ्री माइंड. एन इमेंस इडल वाज फाउंड, यहाँ इडल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, साइट पे मूर्ति पाई जाएगी. डेल्टा इज द राइट आंसर. ठीक है, इनश्योर, एनश्योर, अनश्योर, एक अश्योर भी होता है. आप जितने भी वर्ड्स डेप्थ में पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि कितनी ज्यादा मतलब आपके पास अबंडेंस में नॉलेज है,
कितना आप याद कर सकते हो एग्जाम के लिए, कितने अच्छी तरीके से प्रेप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी पहले ये सारे देखते हैं। ये तो इंश्योरेंस से बना है, तो जब भी मनी की बात आती है, लोन की बात आती है, तब इंश्योर आता है। इंश्योर आता है टू मेक श्योर समथिंग, ठीक है। जब आप एक कंडीशन की, ये जो कंडीशन है फुलफिल होगी ही होगी, उसको इंश्योर करना बोलते हैं। अनश्योर यू वेरी वेल नो, समथिंग हु इज नॉट सर्टेन, समवन हु इज नॉट सर्टेन, या हाँ समथिंग विच इज नॉट सर्टेन। कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई इंसान, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। चलो, वन शुड बी वेरी, अच्छा वेरी का मतलब क्या होता है? अलर्ट एंड केयरफुल, ठीक है। वन शुड बी वेरी ऑफ विजिटिंग वेबसाइट्स दे आर अनश्योर ऑफ, ये तो बिल्कुल सही है। जिसमें आपको सर्टेनिटी नहीं है, उन वेबसाइट्स को मत ओपन करिए, ठीक है, और थोड़ा अलर्ट रहिए ऐसी वेबसाइट से। मीना सेज शी ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर दैट शी हैज सम लूज कैश। ये कंडीशन है कि उसके बैग में, उसके जो पर्स है उसमें कुछ थोड़ा कैश होना चाहिए, उसके हैंड बैग में। तो वो क्या करेगी? इंश्योर करेगी ना। यहाँ से कहाँ से इंश्योरेंस या इंश्योर की बात आ गई? केवल was ensure of the possible consequences of the decision। ये जो केवल था वो क्या था? जो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज है डिसीजन के, उनको लेके थोड़ा अनश्योर था। तो ये भी गलत, और सेकंड भी गलत, एक ही सही है, दैट इज वन। सो द राइट आंसर इज चार्ली। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये नहीं कि आप एक्साइट होकर आपने वहां पे तो पूरा सॉल्व कर दिया, और यहाँ पे कई बार मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए देखा है। रीजन, या तो बहुत ज्यादा हेस्ट में रहते हैं, आप जल्दबाजी में रहते हैं, हेस्टनेस बहुत है। दूसरा, आप इतना घबराए हुए हैं, आप पे इतना टाइम प्रेशर चल रहा है कि आप कुछ भी मार्क कर रहे हैं, और एक बार OMR में आपने डॉट फिल कर दिया तो वही आपका आंसर हो गया। इसके बाद आप अगर अपना आंसर चेंज भी करेंगे और वो आंसर सही भी है, तो आपको उसके लिए कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हम नए सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये पिछले 2 सालों से एग्जाम में आ रहा है स्टूडेंट। 2024 में इसको पहली बार सीडीएस में इंट्रोड्यूस किया गया। पहले से 5 क्वेश्चंस आए थे साइकिल 1 में, जो कि अगस्त में हुई थी। फिर 10 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद से रेगुलरली एग्जाम में आ रहे हैं। 2025 में भी आया और इस बार 2026 में भी आया। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस है, अभी समझते हैं। क्लास में भी करा है इनको, ठीक है। आप डायरेक्शंस पढ़िए, एक बार गो थ्रू करिए। In the following items a pair of sentences, कितने sentences हैं? Sentence 1 and sentence 2। इसको statements भी बोल सकते हैं, ठीक है। Is given, select the most appropriate and relevant correlation। इन्हें बोलते हैं correlating sentences। इनमें आपस में क्या relation है, वो हमें सबसे पहले इनको समझ के डिकोड करना है और फिर अपना आंसर मार्क करना है। ये करने से पहले मैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग बता दूं। कॉन्ट्रडिक्ट करने का मतलब होता है कंप्लीटली अपोज करना, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है दो स्टेटमेंट्स में बहुत डिफरेंस होना, दोनों अलग हैं। विरोध तो नहीं करी, बट आपस में बहुत अलग है। कंफर्म करना मतलब आप जानते ही हैं, किसी बात का प्रूफ देना, जस्टिफाई करना। क्वालिफाई का भी मतलब है एग्जाम्पल के थ्रू किसी बात को जस्टिफाई करना, ठीक है। चलिए, तो वो अभी समझते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समर इन दिल्ली इज एक्सट्रीमली हॉट। दिल्ली का जो समर है वो कैसा रहता है? काफी ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन अगर मैं शिमला के समर की बात करूं तो कंपैरेटिवली क्या रहता है? कोल्ड, इज क्वाइट कोल्ड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका आंसर होगा ब्रावो। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम कॉन्ट्रडिक्ट क्यों नहीं होगा? स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रडिक्ट तब होता जब दूसरी स्टेटमेंट होती समर इन दिल्ली इज क्वाइट कोल्ड। इस वाली सेंटेंस को ये वाली सेंटेंस पूरी तरीके से कब कॉन्ट्रडिक्ट करती है? जब दिल्ली की ही बात चल रही होती, ठीक है। देयर इज अ बी, एनीवे इट्स ओके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पूरी तरीके से विरोधाभास नहीं हो रहा है, इनफैक्ट दो डिफरेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जो पहले में असर्ट किया गया है, जो कन्वे करा गया है, और जो दूसरे में कन्वे करा गया है, वो दो बातें एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। हालांकि दोनों सही हैं और कोई भी एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज ब्रावो। ओके,
बनानास आर गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम जो कि के होता है, इसे पोटेशियम नहीं बोलते, इसे पोटेशियम बोलते हैं, ठीक है, गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं बहुत लोग। बनानास आर गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड डॉक्टर्स ऑफन रेकमेंड बनानास टू मेंटेन हेल्दी लेवल्स ऑफ पोटेशियम। तो आप ही बताइए ना, ये जो S2 है ये S1 को क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्या कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, क्या डिफरेंट है, बहुत कंफर्म ही तो कर रहा है, ठीक है। ये कि डॉक्टर्स तभी क्या करते हैं, बनाना को रेकमेंड करते हैं क्योंकि उससे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो पोटेशियम का लेवल है वो क्या रहता है, कंट्रोल्ड। इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस नो एग्जॉस्ट एमिशन। ये जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं ये बिल्कुल भी क्या नहीं करती, एमिशंस एग्जॉस्ट नहीं करती हैं। हाउएवर, अब देखो ये तो पता है, आप अगर बेसिक इंग्लिश जानते हैं तो ये कंजंक्शन वैसे भी कॉन्ट्रडिक्शन ही लाता है, ये कंजंक्शन हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन लाता है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन ही तो ला रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है ना उन कार्स को, उन इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज करने में, वो आई कहाँ से है, दे मे कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। तो अगर ये फॉसिल फ्यूल से आती हैं और आप कह रहे हैं ये बड़ा क्लीन फिर एग्जॉस्ट एमिशन, सॉरी एग्जॉस्ट एमिशन नहीं निकलता, बड़ा क्लीन एमिशन निकलता है, तो ये तो कहीं ना कहीं विरोध कर रही हैं दोनों स्टेटमेंट। द राइट आंसर इज अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज अल्फा। Let's move forward. Okay, we have done 93, right? Where is 94? Here. Mount Everest is the tallest peak in the world. हाँ, हिमालयन रेंज की ही और वर्ल्ड की भी क्या है, सबसे टॉलेस्ट पीक है। कहाँ पे है, नेपाल में। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं और ये कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। K2 इन काराकोरम रेंज, अब एक और रेंज है काराकोरम, वो किससे टॉल है, माउंट एवरेस्ट से। अब आप एक बात बताइए, क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, माउंट एवरेस्ट जो कि सच में सबसे टॉलेस्ट पीक है। अब देखिए स्टेटमेंट हो सकता है कि स्टूपिड हो या लॉजिकल हो, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी आपकी रीजनिंग देखनी है कि ये दो स्टेटमेंट आपस में कर क्या रही हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, दे आर कॉन्ट्रडिक्टिंग। ऑलराइट, कंफर्म और क्वालिफाई तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्रू नॉलेज इज ट्रू पावर, कहते हैं जो नॉलेज होती है ना, सच्ची नॉलेज, वो सच्ची पावर है। अ लिटिल नॉलेज हाउएवर इज अ डेंजरस थिंग, लेकिन अगर बहुत ही कम नॉलेज है तो वो डेंजरस भी है, ठीक है। तो नॉलेज वैसे तो पावरफुल है, लेकिन वो क्या भी है, इसी का विरोध करते हुए क्या कहते हैं कि अगर नॉलेज कम है तो वो क्या कर देगी, डिस्ट्रक्ट। पावर नहीं है फिर तो डिस्ट्रक्शन है, डेंजर है, सो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, ठीक है। 96, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो स्लो है, जो काम है, कंसिस्टेंट है, वही रेस को जीतता है, क्योंकि हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो ये तो कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट ही कर रही है, राइट। इसको बिल्कुल क्या कर रही है, क्वालिफाई कर रही है, ठीक है, क्वालिफाई कर रही है। 97, मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। बहुत से लोग अगर आपस में कोई काम करते हैं तो काम आसान हो जाता है, लेकिन टू मेनी कुक स्पॉइल दी ब्रॉथ। लेकिन बहुत ज्यादा अगर सभी लोगों ने एक ही काम को करने लगे तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो स्पॉइल भी हो जाए, ठीक है। इसका स्टूडेंट कंफर्म करिएगा, बिकॉज क्वालिफाई में ना एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दे देती ना तो क्या होता, ठीक है। चलिए अगला है 98, द न्यू लैपटॉप मॉडल इज वेरी डिजायरेबल। ठीक है भाई, जो नया लैपटॉप का मॉडल है बड़ा डिजायरेबल है, लेकिन जो बैटरी लाइफ है वो बेटर हो सकती है। अब अगर डिजायरेबल है, लेकिन यहाँ पे आपने एक उसका क्या बता दिया, एक विरोध कर दिया ना आपने, उसका एक लूप होल बता दिया है। तो डिजायरेबल भी है और फिर आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ चेंजेस भी लाए जा सकते हैं, कुछ बेटर भी हो सकता है, ठीक है। रिसर्च शोज एक्सरसाइज इंप्रूव्स मूड। A 2022 study links daily walks to reduce depression. रिसर्च क्या कहती है कि एक्सरसाइज करना या वॉकिंग करना मूड सही कर देती है, और 2022 की एक स्टडी कहती है कि जो डेली वॉक्स हैं, जो कि एक पार्ट है एक्सरसाइज का, वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है डिप्रेशन को, ठीक है। तो बिल्कुल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वालिफाई। ये देखो एग्जाम्पल दिया है डी, क्वालिफाई। जब भी एग्जाम्पल दिया जाएगा ना आप क्वालिफाई के साथ जाइएगा। वेयर इज द 100th क्वेश्चन, ये रहा। Some people doubt that God exists. कुछ
लोगों को क्या है, डाउट है, और ऐसे लोगों को एग्नोस्टिक कहते हैं. It is a one word substitution for all those people who doubts the existence of God, जो dislike या जो God पे विश्वास नहीं रखते, एथियस्ट, और जो भगवान पे विश्वास रखते हैं थियस्ट. ये तीनों वर्ड्स एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, स्पेशली एथियस्ट और थियस्ट पूछा जाता है. ठीक है. Some people doubt that God exists. Belief in the existence of God is universal. अब आप ही बताइए कि एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे. ये कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो गॉड की एग्जिस्टेंस को डाउट करते हैं, और ये कह रहे हैं कि बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज यूनिवर्सल, मतलब हर जगह लोग गॉड पे बिलीव करते हैं. नहीं, दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, विरोधाभास. चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या है. इसके लिए हमें डायरेक्शन पढ़ना होगा स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी. इन द फॉलोइंग आइटम्स मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. मतलब आपको इस तरफ वर्ड्स या एक्सप्रेशन या स्पेशलाइज्ड टर्म्स दिए गए, इस तरफ उनके मीनिंग्स हैं, आपको बस मैच द फॉलोइंग करना है. ठीक है, चलिए देखते हैं. सबसे पहले fortuitous, fortitudinous, fortitude एक वर्ड है उससे बना है. formidable, forlorn. ऐसे में ट्रिक आपके लिए है कि आपको पहले जितने वर्ड्स आते हैं ना एटलीस्ट पहले उतने मार्क करिए. जैसे फॉर्मिडेबल हमने क्लास में करा था, कोई ऐसा पर्सन जो कि क्या है, हल्का सा आपको डर पैदा हो रहा है बिकॉज वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, बहुत ही एक ऐसे फिगर हैं जिनको देख के आपको शर्म और थोड़ा सा डर अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है, डॉन्टिंग. ठीक है. अब देखिए सी में कहाँ कहाँ पे 2 है, सी में 2 है इन दो ऑप्शंस में, तो इन दो को तो आप सीधे एलिमिनेट कर दीजिए. ठीक है. फॉरलॉर्न क्या होता है, जब आप दुखी हैं, अकेले हैं, आपको बहुत ज्यादा क्या आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, तो डी का 3, अब डी का 3 है सिर्फ इस ऑप्शन में. ठीक है, दिस इज माई राइट ऑप्शन, ब्रावो. लेकिन बाकी भी मैच करिए. अभी कह रहे हैं बी का 1 fortitudinous. ठीक है, देखिए फोर्टिट्यूड का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, हालांकि ये बस एडजेक्टिव दी है, फोर्टिट्यूड का मतलब ही होता है ब्रेवरी, करेज. ठीक है. एंड fortuitous इज व्हाट, फोर्थ, दैट इज जो अचानक से एक्सीडेंटल होती है, जो बाय चांस हो जाती है. सो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3. द राइट आंसर इज ब्रावो. आगे भी करते हैं. 102. एक क्वेश्चन में टेक्निकली 4 वर्ड्स दे आर आस्किंग यू, राइट. टोटोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल एंड एपिडेमियोलॉजिकल. ठीक है. जो चीजें बहुत ही रेपिटेटिव होती हैं, बार बार दोहराई जाती है, उनको बोलते हैं टोटोलॉजिकल. ठीक है. तो देखिए कौन कौन से एलिमिनेट कर सकते हैं. ये दोनों आप एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शंस को, बिकॉज एक का तो 2 ही है. ठीक है. फिर ऑन्टोलॉजिकल क्या होता है स्टूडेंट्स, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस. ठीक है, इज नोन एज ऑन्टोलॉजिकल. तो मतलब आप बी के में किसके साथ जाएंगे, 4 के साथ, और बी में 4 का एक ही ऑप्शन है विच इज दिस. सो दिस इज माई राइट आंसर. सी का होता है रिलेटेड टू नॉलेज, दैट इज एपिस्टेमोलॉजिकल. ठीक है, यहाँ पे नॉलेज की बात करी जाती है, और जब किसी डिजीज या किसी इंजरी की बात करी जाती है स्टूडेंट्स, तो उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल. सो द राइट आंसर इज दिस. ओके, गुड वन. डी का जाएगा 3. ओके, 103. एपिटैप, जब किसी की कब्र पे कुछ शब्द लिखे जाते हैं, वर्ड्स रिटन अबाउट अ डेड पर्सन, उसी की कब्र के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, एपिटैप बोलते हैं. ठीक है. और किसी भी बात को जब एक क्लेवर तरीके से करा जाता है, कहा जाता है, उसको बोलते हैं एपिस्टल. पहले देखिए क्या होता है, अ फॉर्मल लेटर. तो ए और बी, ए का 1, बी का 4, कहाँ पे ए का 1, बी का 4, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. ठीक है. और जब आप किसी बात को कैसे करते हैं, एक ही मजाक तरीके से, चालाक तरीके से एक्सप्रेस कर देते हैं सरकाज़म में, दैट इज एपीग्राम. ठीक है, डी का 3. और बचता क्या है, एपिथेट, एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब व्हाट आर the epithets of his personality, that are what are the characters of his personality. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था बट इतना भी नहीं, इजी था. अगर ये 2 भी आते हैं, ये तो सभी को पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, तो आप इसको कर सकते थे. फॉर्मल लंबा लेटर, अच्छा खासा चौड़ा लंबा, दैट इज नोन एज एपिस्टल. ठीक है. चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 104. ओके, निलिज्म, फैटलिज्म, हेडोनिज्म एंड ईगोइज्म सारे क्लास में करे हुए हैं स्टूडेंट. सबसे पहले हेडोनिज्म मैंने क्या बताया था, जो लोग हमेशा प्लेजर सीख करते हैं अपनी लाइफ में, जिनको सिर्फ प्लेजर ही प्लेजर चाहिए. ठीक है. सबसे पहले सी का 1, और सी का 1 किस किस में है, ब्रावो और डेल्टा में है. ठीक है. और फेटलिज्म, जो लोग फेट पे बहुत भरोसा करते हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हैं कि हम रोक नहीं सकते. ठीक है. तो क्या हो गया ये,
बताइए, बी का 2, द फैक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग दैट यू कैन नॉट प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग बिकॉज वो आपकी डेस्टिनी है। ईगोइज्म क्या होता है, जब आप अपने को ही सब कुछ समझते हैं, आप सबसे जरूरी खुद को समझते हैं, ठीक है, और जब आप रियलिटी से दूर भागते हैं, उससे दूर रहते हैं, निहिलिज्म, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ब्रावो, ना कि डेल्टा, ठीक है। लेट्स डू 105, a big one. Let me zoom out a bit for you all so you can see all the options. ये तो कई बार आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है ना, जब तूफान आता है वो भी किसका, बर्फ का, उसे ब्लिजर्ड बोलते हैं, राइट। सो ब्लिजर्ड इज व्हाट, सीवियर स्नो स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज तेज हवाएं चलती है, बर्फीली हवाएं चलती है, ठीक है। चलो अब टाइफून्स क्या होते हैं, टाइफून्स होते हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वेस्टर्न पैसिफिक में आते हैं, नहीं तो डी का 1, अब देख लो भाई, ए का 3 और डी का 1 कहाँ पे है, इन दो ऑप्शन में है, तो अभी तो सिर्फ यही दो ऑप्शन एलिमिनेट हो पाए हैं, ठीक है, ए का 3 और डी का 1, ठीक है। और फिर क्या है, थंडरस्टॉर्म क्या होता है, थंडरस्टॉर्म इज बेसिकली अ वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव कॉलम ऑफ एयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम, नो ये होता है टॉर्नेडो जो थंडरस्टॉर्म से निकलता है, तो बी का 4, ठीक है। और थंडरस्टॉर्म क्या होता है, स्टॉर्म विद थंडर एंड लाइटनिंग एंड यूजुअली हैवी रेन, ठीक है, जिसमें बारिश बहुत होती है, तो सी का 2, द राइट आंसर इज अल्फा, सी का 2, ठीक है, अल्फा इज द राइट आंसर, गुड वन। 106 देखते हैं, आई होप इट्स विजिबल, लेट मी zoom out a bit for all of you. अच्छा, बट ऑप्शंस नहीं देखेंगे फिर, चलिए ऐसे यू हैव टू मैनेज। इम्प्लीकेशन, कॉम्प्लिकेशन, सबसे इजी था कॉम्प्लिकेशन, हर कोई कर लेता, जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीजें, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। एप्लीकेशन क्या होता है, जब आप किसी चीज को अप्लाई करते हैं, ठीक है। और सप्लीकेशन होता है पूजा करना, किसी से प्रेयर मांगना, ठीक है। एंड अ वर्बल और रिटन रिक्वेस्ट इज एप्लीकेशन, एंड इम्प्लीकेशन क्या हो गया, a meeting not clearly stated but which can be inferred, जैसे इसको बोलते हैं हिंट, कि मुझे एक इम्प्लीकेशन मिला है कि तुम जॉब छोड़ने वाले हो, दैट इज एक सॉर्ट ऑफ हिंट मिला है, क्लियरली तो स्टेटेड नहीं है, बट मुझे एक ऐसा आइडिया लगा है, एक ऐसा इन्फर हुआ है मुझे। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्या कॉम्बिनेशन बना, ए का गया 3, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो पहले ही, ऐसे ही करना एग्जाम में, यहाँ पे भी कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, डी का गया 2, ठीक है, दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। बी का क्या गया स्टूडेंट्स, कॉम्प्लिकेशन कहाँ गया, 4th में गया ना, तो द राइट आंसर इज, वेट, द राइट आंसर इज दिस वन, ठीक है, चार्ली, चार्ली सही है, मैं एक और बार मार्क कर दूं इफ यू गेटिंग कंफ्यूज, चार्ली, ठीक है, सी का 1। चलिए 107, एस्क्राइब, प्रेस्क्राइब, प्रोस्क्राइब, क्लास के करे क्वेश्चन है, कोई चीज को जब आप क्या कर देते हैं, बैन कर देते हैं, फॉरबिड कर देते हैं ऑफिशियली, दैट इज प्रोस्क्राइब। प्रेस्क्राइब क्या होता है, जब आप किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं, कुछ रेकमेंड करते हैं, ठीक है। इंस्क्राइब क्या होता है, कार्व आउट या किसी स्ट्रक्चर पे जब आप कुछ लिखते हैं, ठीक है। और ये तो रहा प्रिस्क्राइब, ले डाउन अ रूल, एंड एस्क्राइब इज जब आप किसी को कुछ क्या देते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं, किसी को कोई अथॉरिटी देते हैं कि यार आई एस्क्राइब माई सक्सेस और माई हार्डवर्क टू माई पेरेंट्स, ठीक है। सो क्या बना, चलिए कोड क्या बना, ए का 1 पहले तो ए का 1 जाएगा, बी का क्या जाएगा स्टूडेंट्स, प्रेस्क्राइब का 3 जाएगा, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, ये कट गया। सी का 4 एंड डी का 2। प्लीज मैं फिर से बोलूंगी, यहाँ पे केयरफुल रहिएगा, यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हुए देखे मैंने स्टूडेंट्स। चलिए 108, प्रैग्मेटिस्ट, जो लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, उनको बोला जाता है। और प्रोलिक्स, जब आप बहुत सारे वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो देखिए कहाँ कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बना, अगर आपको नहीं भी आता तो आप कैसे देख सकते हो, ए का क्या बना 4, पहले तो ये दो एलिमिनेट कर दो, ठीक है, और डी का क्या बना 1, तो अब आपको इन दोनों में डिसाइड करना है। प्रोमिथियन क्या होता है, प्रोमिथियन का मतलब होता है जब आप बेसिकली जो ओरिजिनल चीजें होते हैं ना, उसमें कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, आपके अंदर वो आप डेयरिंग है, आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, कुछ ओरिजिनल में कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये रहा बी का 2। और प्रो मॉनिटरी का क्या मतलब होता है,
आपने कुछ ऐसा वाटर बॉडी देखी है, उसमें एक पीस ऑफ लैंड देखा है, उसको बोलते हैं हेडलैंड दैट जस्ट इन थ्रू द लार्ज वाटर बॉडी, दैट इज, तो द राइट आंसर इज अल्फा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 109। ऑल राइट, सबसे पहले देखते हैं मॉर्गेज। इसको मॉर्गेज मत बोलिएगा, इट्स मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब है वो जो लोन, मतलब जो आप लेट्स से आप एक बिल्डिंग लेने जा रहे हैं, एक बिल्डिंग खरीदने जा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट जो आप एक सिक्योरिटी आपसे बैंक लेती है ना, क्योंकि उसने आपको लोन दिया है, उसको मॉर्गेज बोलते हैं। ठीक है, टी साइलेंट है। जब आप फंड्स ग्रांट करते हैं सोशल कुछ बेनिफिट या कुछ अच्छे कॉज के लिए, जो पैसा होता है उसको एंडाउमेंट बोलते हैं, एंडाउमेंट। ठीक है, लीज तो आपको पता ही है, अग्रीमेंट, आप जो रेंट पे प्रॉपर्टी देते हो। और बिक्वेथ क्या होता है? टू लीव अ प्रॉपर्टी फॉर बेनिफिशियरी वाया अ विल। तो बताइए क्या बना? सबसे पहले तो ए का 2, ए का, ठीक है, ये इसमें भी है, बी का 4, बी का 4 है क्या? नहीं, बी का तो 1 है, सो द राइट आंसर इज ब्रावो। ठीक है, सी का 4 है और डी का 3 है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 110, जो इसी तरीके का एक क्वेश्चन है। समथिंग दैट कॉजेस फायर इज इंसेंडियरी। ठीक है, और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेते हो, मतलब इनकॉशियस हो, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, और जिन चीजों से बहुत ज्यादा लाइट और हीट निकलती है, दैट इज इनकैंडेसेंट। और अगर आप इंसेंस्ड हैं तो आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। तो कौन कौन सा हो गया? ए का 4, बी किसके साथ जाएगा? बी 1 के साथ जाएगा। ठीक है, और सी जाएगा 2 के साथ और डी जाएगा 3 के साथ। सो द राइट आंसर इज ब्रावो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ब्रावो। Now we are heading towards the last 10 questions of the paper. ठीक है, so far we have covered 110 questions and that's very good that probably you being so meticulous about it. अब ये क्या है? ये आपने करे हैं सॉल्व, इसको बोलते हैं स्पॉटिंग एरर्स। आपसे बोल रहा है कि अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है किसी भी पार्ट में तो उस पार्ट को मार्क करिए, और अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, सो गो फॉर डी, दैट इज नो एरर। टुडे शी वाज, एंड ये पहले ही एरर आपको दिखाई दे गया। टुडे की बात हुई है, आज की बात हुई है, तो क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट आएगा। आज वो क्या है? एक अकम्प्लिश्ड, एक जानी मानी विख्यात सिंगर है। ठीक है, बिकॉज शी हैड ट्रेन्ड अंडर एन एक्लेम्ड गुरु इन हर यूथ। तो भाई द आंसर इज अल्फा, टेंस का एरर था। आइदर माई ब्रदर्स, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अगर ये प्रोनाउन आती है तो ये वन एट अ टाइम की बात करती है, और इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। ये वन एट अ टाइम की क्योंकि बात करती है। सो आइदर माई ब्रदर्स और माई फ्रेंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इज कमिंग। ठीक है, और एक और चीज, इसमें एक और फैक्टर होता है कि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स है ना, एक है प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब ये दिख रहा है ना आपको प्लूरल नाउन, और यहाँ पे कैसी नाउन है? सिंगुलर नाउन। तो यहाँ वर्ब के नियरेस्ट ये है। ठीक है, फ्रेंड है जो कि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। चलिए कराएंगे क्लास में। द पेयर ऑफ ट्राउजर्स यू बॉट फॉर मी डू नॉट फिट मी। सी, यहाँ पे ये नहीं है मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट ये है, और एक पेयर की बात हो रही है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब हैज टू बी सिंगुलर, यही तो कहता है ना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो डज नॉट फिट। ठीक है, सो द एरर इज इन चार्ली। यहाँ पे भी एरर चार्ली में, यहाँ अल्फा में। आगे बढ़ते हैं। Paridhi knew she still had to buy the groceries, pick up, ड्राई क्लीनिंग एंड वो 2-3 काम लिखे हुए हैं, और 2-3 जब ऐसे मेंशन की एक्टिविटीज तो मुझे पंक्चुएशन चाहिए, पंक्चुएशन चाहिए। अल्फा में एरर है, परिधि न्यू शी स्टिल हैड टू बाय द ग्रोसरीज, फिर एक पंक्चुएशन दैट इज कॉमा लिया है, फिर ये दूसरी एक्टिविटी और फिर तीसरी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी फर्स्ट, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, इनको अलग करने के लिए आई नीड पंक्चुएशन। इजी था। The spectators, दर्शक, throng the stadium to watch 2 plus
V1 इंफिनिटिव, ठीक है, वर्ब के बाद सीधे आप कैसे एडजेक्टिव लगा सकते हैं भाई, मुझे बीच में कुछ तो प्रेप चाहिए, तो क्या आएगा, देयर, ठीक है। जो स्पेक्टेटर्स थे वो क्यों इकट्ठा, थ्रॉन्ग मतलब क्यों क्राउडेड हो गए, इकट्ठा हो गए स्टेडियम में, क्योंकि उन्हें किसे देखना था, अपने अपने, या देयर आएगा वैसे यहाँ पे तो स्पेक्टेटर्स, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो इसीलिए प्लूरल ही आएगा यहाँ पे भी केस प्रोनाउन का। सो क्या आ जाएगा, मुझे प्रोनाउन चाहिए था, प्रोनाउन, और प्रोनाउन भी क्या आएगा, पर्सनल प्रोनाउन विच इज देयर। ओके, चलिए, इजी थे, बहुत इजी थे, इसमें भी चार्ली मैरर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पैसेज है, आपने अभी तक कर लिया होगा इसको एग्जाम में, मैं क्विकली आपको एक बार रीड करूंगी और फिर आंसर आपको बताऊंगी, ठीक है। एज द न्यू सेंचुरी बिगिंस इट इज बिकमिंग एविडेंट, मतलब अब ऑब्वियस होता चला जा रहा है, टू अर्बन ड्वेलर्स, ड्वेलर्स कौन होते हैं, द पीपल हु रिजाइड, जो कहीं पे रह रहे होते हैं, जो अर्बन ड्वेलर्स हैं, वेदर इन इंडस्ट्रियल और डेवलपिंग कंट्रीज, दैट देयर इज एन इमिनेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑटोमोबाइल एंड दी सिटी। तो कहते हैं कि आजकल एक चीज बहुत एविडेंट हो गई है कि अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहता है या डेवलपिंग कंट्रीज में रहता है तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है, ठीक है। इमिनेंट का वैसे मतलब होता है द थिंग्स विच आर इनहेरेंट, जो पहले से अंदर होती हैं, जैसे इनबिल्ट होती हैं, ठीक है। चलिए, अर्बन एयर पॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, ऑफन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स क्लेम्स मिलियंस ऑफ लाइफ, बहुत सारी लाइफ ले लेता है कौन, पॉल्यूशन। कंजेशन हो रहा है, रोडें एकदम भर चुकी हैं, स्पेशली जो अर्बन एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ऑल्सो टेक्स डायरेक्ट इकोनॉमिक टोल, इकोनॉमी पे भी एक टोल पड़ता है, एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत कम समय में, और कहीं ना कहीं फ्यूल में भी बहुत ज्यादा पैसे में क्या आ जाती है, कुछ हाल स्प्लर्ज आ जाता है, ठीक है। अनदर कॉस्ट ऑफ सिटीज दैट आर डिवोटेड टू कार्स इज अ साइकोलॉजिकल वन, डेप्राइवेशन ऑफ कॉन्टैक्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड। अब दूसरा क्या प्रॉब्लम है, अच्छा डेप्राइवेशन अच्छा वर्ड है, डेप्राइवेशन का मतलब होता है स्कार्सिटी, किसी चीज की कमी होना, ठीक है। तो अब क्या है, नेचुरल वर्ल्ड के साथ ये जो अर्बन ड्वेलर्स हैं वो कॉन्टैक्ट में नहीं रहे। एन एस्फाल्ट कॉम्प्लेक्स, अभी इसके बारे में समझेंगे क्या होता है। देयर इज अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस दैट देयर इज एन इनेट ह्यूमन नीड, ठीक है। अच्छा, इनेट का मतलब होता है विच इज, सॉरी अगर मैंने इसको बोला, इमिनेंट होता है ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह पाया जाता है स्टूडेंट्स, ओके चलिए। एंड इनेट का क्या मतलब होता है, जो आपके अंदर की इनबिल्ट क्वालिटी है। इनफैक्ट इमिनेंट भी सेम ही है, कुछ ऐसा गलत नहीं है, इमिनेंट मतलब विच इज ऑलरेडी इनबिल्ट एंड विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हर जगह प्रेजेंट है। ह्यूमन नीड टू कॉन्टैक्ट विद नेचर, तो जरूरी है भाई कि नेचर के साथ कॉन्टैक्ट में हो ह्यूमंस, वो भी जो रूरल एरिया में रह रहे हैं या अर्बन एरियाज के ड्वेलर्स हैं। Both ecologists and psychologists have been aware of this for some time. Ecologists led by Harvard University biologist, इनका नाम है E.O. Wilson, have formulated the biophilia hypothesis, which argues that those who are deprived of contact with nature suffer psychologically. मतलब जो लोग नेचर से दूर रहते हैं वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली बहुत सफर करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग में प्रभाव पड़ता है, उनकी साइकोलॉजी डिसबैलेंस हो जाती है, बहुत सी ऐसे इश्यूज होते हैं। एंड दिस डेप्रिवेशन, ठीक है, फिर से दिस स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी किस चीज की, नेचर की, ठीक है, लीड्स टू मिजरेबल डिक्लाइन इन वेलबींग, तो आपकी वेलबींग को इफेक्ट करता है। मीनवाइल साइकोलॉजिस्ट हैव कॉइन्ड देयर ओन टर्म इको साइकोलॉजी, अब साइकोलॉजिस्ट ने एक टर्म कॉइन की है, फाउंड की है, दैट इज इको साइकोलॉजी, इन विच दे मेक द सेम आर्ग्यूमेंट, ठीक है। थियोडोर रोजैक, अ लीडर इन फील्ड, cites a study that documents humans' dependence on nature by looking at the rate of the recovery of patients in a hospital in, ये एक जगह का नाम है, ठीक है, those whose rooms overlook gardens with grass, मतलब ये जो लोग हैं ना, ये जो रह रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं पेशेंट्स हॉस्पिटल में, अब जिन जिन के रूम के बाहर गार्डन्स हैं, ग्रास है, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड हैं, वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जहाँ पे क्या है, शायद पार्किंग लॉट है, इंडस्ट्रियल एरिया है, कार्स हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक स्टडी करी गई है। स्टूडेंट इसको इसीलिए इतना क्विकली मैंने समझाया क्योंकि एक तो पैसेज बिल्कुल टफ नहीं है, सीरियस का एग्जामिनेशन है, इट मींस यूर ग्रेजुएट, ठीक है, तो आप इसको खुद भी समझ सकते हो, बहुत ईजी है। एक बार हम आंसर जरूर डिस्कस कर लेते हैं, बहुत एक अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है इसमें, ठीक है। सो व्हाट इज द एस्फाल्ट कॉम्प्लेक्स, पूरे पैसेज में आपको क्या लगा, इसका ये मतलब है कि वो सिटी डोलर्स जो किसके कनेक्शन में नहीं है, किसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, नेचर के साथ। The complexity of urban life and the air pollution नहीं, the casuality between urban pollution automobiles, the air pollution that results, no. The right answer is alpha, ठीक है। अगला देखते हैं 117,
The passage draws attention to which one of the following? The need to build more better roads. roads का तो कहीं mention ही नहीं है. The need for ecologists to learn from psychologists. नहीं भाई, ecologists क्यों सीखेंगे psychologists से, या vice versa, ऐसा तो कोई passage ही नहीं है. The need to ban cars in cities. नहीं भाई, the need to remain close to nature even within our cities. मुझे लगता है passage तो बहुत बहुत easy था student CDS का, मतलब you know, एक बार बस go through करते और answers आपके सामने थे. Very easy. The biophilia hypothesis, ये क्या कहती है? It argues that psychological disorders are caused by biological organism. नहीं भाई, biological organism से थोड़ी हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप nature से दूर हैं. ठीक है. It is designs of biological experiments which studies families that live in cities. नहीं, formulates the separation from nature. बिल्कुल ये सही है. It formulates that the separation from nature leads to infelicitous mental states. या describe a philosophy that studies humans in relation to natural phenomena. No, the right answer is Charlie. ओके, चार्ली. इजी था, बहुत इजी. 119th भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड रेलेवेंट सेट ऑफ कीवर्ड्स दैट मैच द कॉन्सेप्ट ऑफ इको साइकोलॉजी. यहाँ पे अभी कुछ नाम भी आए थे, आपने खुद ही देखा है. रोजबैक, ठीक है, ऑन दिस प्लेस, पेनिसिल्वेनिया, नेचर इंड्यूस्ड रिकवरी फॉर पेशेंट. ठीक है, यही तो मेंशन था. कहाँ पे मेंशन थी नेम्स, ये देखो. ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आपने कहाँ देखे? ये जो भी है इकोलॉजिस्ट, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये देखा कि जो लोग कहाँ रह रहे हैं, नेचर के आसपास रह के रिकवर कर रहे हैं, जो पेशेंट्स आसपास है नेचर के, वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं ना. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड रेलेवेंट सेट ऑफ कीवर्ड्स. तो पूरा इको साइकोलॉजी को इन्हीं वर्ड्स ने समझाया है. ठीक है, ट्रीज फ्लावर्स का कोई मेंशन नहीं है, ऑटोमोबाइल का नहीं है. चलिए, इन दिस पैसेज द वर्ड इमिनेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था. देखो, इनएविटेबल का मतलब होता है अनस्टॉपेबल, जिसको हम रोक नहीं सकते. ठीक है, अनस्टॉपेबल. इंटेंशनल, यू वेरी वेल नो. सेरेंडिपिटस, नो. द राइट आंसर इज इनहेरेंट. ठीक है, डी. सेरेंडिपिटी होती है जब कुछ आपके साथ अचानक से पैराडॉक्स की सिचुएशन हो जाए. ठीक है, तो कोई गलती हो जाए. तो द राइट आंसर इज इनहेरेंट, दैट इज विच इज ऑलरेडी इनबिल्ट. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसा है? इनबिल्ट है. ठीक है, इमिनेंट है. So with that we have covered all the 120 questions with the most accurate answer key students. Okay, still you may feel that इस बार का जो पैटर्न था उसमें थोड़ा स्लाइड चेंज देखा गया. See, I have always divided English into 3 categories. One is vocabulary, the other one is comprehensive skills, and the third is the grammar. सबसे ज्यादा आपने भी इस पेपर में क्या रियलाइज करा? Questions were डायरेक्टली फ्रॉम द सेक्शन ऑफ वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में क्या क्या आता है? वोकैबुलरी में एंटोनिम्स आते हैं, वो आए थे 10 क्वेश्चन आए थे. सिनोनिम्स आते हैं, 10 क्वेश्चंस वर देयर. 20 क्वेश्चंस ये हो गए. होमोनिम्स के 20 क्वेश्चंस थे, इफ यू रियलाइज, इनिशियली एंड बाद में भी 10 क्वेश्चंस थे, 40 क्वेश्चंस. देन 10 क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम मीडियम्स एंड फ्रेजेस. 120 में से अगर आपने नोटिस किया होगा तो 50 क्वेश्चंस, विच इज ऑलमोस्ट आई गेस 40% of the weightage was directly from the vocabulary वाला सेक्शन. vocab is very very important. आपको उसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा. जहां से भी आपको न्यू वर्ड्स मिलते हैं, just make a note of it and revise it regularly. In fact, use it. It will basically adorn your personality. personality को क्या करेगा? डेकोरेट करेगा. ठीक है, और इसके अलावा ग्रामर के बहुत सिंपल रूल्स आए थे. वी हैव कवर्ड ऑल द रूल्स इन द क्लास. ग्रामर कहाँ पे यूजफुल हुई? हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में हमने यूज करी. हमने स्पॉटिंग एरर में ग्रामर यूज करी. इस तरीके के पैसेज को समझने के लिए आपकी कॉम्प्रहेंसिव स्किल्स होना, बेहतर होना बहुत जरूरी है. सो आपके फिलहाल S1 S2 के क्वेश्चंस हो, S1 S6 के क्वेश्चन हो, इस तरीके का एक मिनी पैसेज हो. ठीक है, वो बेसिकली कॉम्प्रहेंसिव स्किल्स में आता है. कुछ ऐसी चीजें थी जो इस बार नहीं आई एग्जाम में. PQRS, जिसमें आपको बेसिकली एक सेंटेंस दिया रहता है, जंबल्ड सेंटेंसेस बोलते हैं इसको. ठीक है, पैरा जंबल्ड. और इसमें बेसिकली एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, उसको जंबल किया जाता है. आपको फिर से उसको रीशफल या रीजंबल करके उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना है. उसके हमेशा 10 क्वेश्चन आते थे, इस बार वो नहीं दिए गए थे एग्जाम में. ठीक है, उसके अलावा काफी वोकैब दी गई थी एग्जाम में. कुछ ऐसा नया बहुत पैटर्न तो नहीं देखा गया. हमेशा से पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आते हैं, वही मैंने आपको कराए थे. सो अनलाइक एनडीए, आउट ऑफ द ब्लू ऐसा कोई भी आपका एग्जाम पेपर नहीं था. ठीक है, सो आई विल जस्ट कन्वे वन थिंग, डू अ गुड रिविजन. द पेपर इज नॉट दैट टफ, यू मे स्कोर गुड इन दिस पेपर. ठीक है, विद दैट आई विश यू ऑल द लक. टेक केयर. जय.